ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we would like to welcome all the devotees on this most auspicious occasion of Sri Narsimha Chaturdasi, the divine appearance of Sri Narsimha Dev, the divine protector of all the devotees. So Sri Narsimha Dev Bhagwan's Leela is vividly described in Srimad Bhagavatam. So as you know that Srimad Bhagavatam contains 12 cantos and 10 subject matters. Atra sarga visargascha sthanam poshnam utaya manvantare ishano katha mukti nirodha ashraya. So these are the 10 subjects which are described in Srimad Bhagavatam. And the subject uti, uti is the so basically okay, just to recapitulate, atra sarga visargascha, sarg means the primary creation, visarg is secondary creation, sthanam is the planetary system, utayah. Anybody knows what is the meaning of utayah or uti? Anybody would like to say? Poshanam. No, poshanam is the next subject matter. I am saying what is meaning of this utayah. Okay, it's uti. Uti basically. So what is meaning of uti? Inclination. Yeah, it is inclination. It is good and bad desires. Shubha Shubhicha. So this is the subject matter. Then obviously utaya, then manvantara, ishanu katha, mukti nirodha ashraya. So poshnam is also the protection, and all these 10 subject matter. So ashraya is the shelter, and in Srimad Bhagavatam ashraya is dasam skand, 10th canto, where Lord Krishna's pastimes is described very vividly and in great detail. So out of around
18,000 slokas. The major portion in Srimad Bhagavatam is 10th canto, which contains many chapters. 10th canto, Dasam Skand, is very elaborate, and the only other incarnation which is described in a great detail is Lord Narsimhadev. So 7th canto complete is dedicated for Lord Narsimhadev. So Shukdev Goswami Maharaj, he dedicates a complete canto of 7th skand for describing the pastimes of Sri Prahlad Maharaj and Narsimhadev. So it's very important. Prabhupada translate the title of 7th canto as Science of God, and chapter 1 says the Supreme Lord is equal to everyone. So the description starts that Maharaj Parikshit, he asked question to Shukdev Goswami, and he says that, oh, my dear sir, dear Brahmana, oh Prabhu, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, he is everyone's well-wisher and he is equal and extremely dear to everyone. Then how come that he become like a common man for sake of Indra, and he kills Indra's enemy? How can a person equal to everyone be partial to some and inimical towards others? So as we read in Srimad Bhagavatam, ete chams kalaha pumsa krishnastu bhagwan swayam indriyari vyakulam loke mradiyanti yuge yuge. Okay. So in the first canto, 3rd chapter, where it is described as Krishna is the source of all incarnation, the description of 24 incarnation of Lord is given. And in that incarnation, in that list of 24 avatar, there is one name Krishna also. So after giving the description of 24 avatar, this shloka says, ete chams kalaha pumsa. ये जो नामावली दी गई है, जो लिस्ट दी गई है इस 24 अवतार में, ये सब भगवान के अंश है या उनके अंश के अंश अर्थात उनकी कला है. लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू मतलब होता है बट, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है. और इंद्रियारी, इंद्र के अरि मतलब इंद्र के दुश्मनों को मारने के लिए, इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, वो हर युग में प्रकट होते हैं. तो इंद्र के दुश्मनों को मारने के लिए भगवान बार बार आते हैं. तो आप देखेंगे कि इंद्र जो है वो भी भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं. हालांकि उनका बड़ा एक टिपिकल कैरेक्टर है भागवतम के अंदर, कोई भी तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र घबरा जाते हैं. लेकिन इंद्र भगवान को एक गिफ्ट देते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है, जब उनका इस धरती पे अवतार होता है, तो इंद्र क्या करते हैं, वर्षा करते हैं. तो आप देखते हैं जन्माष्टमी के टाइम पे लगभग हर टाइम बहुत तेज बारिश होती है. तो भगवान का जब जन्म हुआ तो इंद्रदेव ने कहा कि चलो आपके लिए एक आपको गिफ्ट दी जाए. तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि भगवान जो कि समोहम सर्वभूतेषु, गीता में भी भगवान कहे हैं कि मैं सब लोगों के लिए समान हूं, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना मैं किसी से प्रेम करता हूं. भगवान ऐसा कहते हैं. और भगवान ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल गीता में देते हैं, फिर उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं. ज्यादातर भगवत गीता के जो श्लोक है उसका डेमोन्स्ट्रेशन भागवत में है. जो भगवान एक प्रिंसिपल बोलते हैं वो भागवत में उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे के बताते हैं. और कभी कभी भगवान गीता के अंदर ही उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं. जैसे भगवान ने कहा कि मया अक्षेण प्रकृति स्वीते से चराचरम. कहते हैं कि अर्जुन, ये प्रकृति ये मेरे अध्यक्षता में काम करती, मेरे निरीक्षण में काम करती है. और फिर जयद्रथ के वध के टाइम पे भगवान ने क्या किया, सूर्य को ढक लिया. तो वही बता दिया भगवान ने कि देखो ये मेरे नियंत्रण में कार्य करती है. तो इस प्रकार से भगवान प्रूव करके बताते हैं अर्जुन को कई बार. तो वो पूछते हैं कि ऐसा कैसा है कि द लॉर्ड हु इज इक्वल एंड इम्पार्शियल टू एवरीबडी बिकेम पार्शियल. सो दिस हैज बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट डाउट. ये पूछते हैं कि ये तो काइंडली डिस्पेल माय डाउट. ये कौन पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी. सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं. परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं. फिर सुखदेव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे है ना. यू हैव आस्क्ड excellent question, because discourse which concerns the activities of the Lord, in which the glories of the devotees are also found, are extremely pleasing to devotees, and it gives a facility to hear and chant about the wonderful activities of the Lord.
और फिर वो बताते हैं कि भगवान विष्णु जो है ही इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल क्वालिटीज एंड देयरफॉर ही इज कॉल्ड निर्गुण। तो निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, उनमें ये जो प्रकृति के 3 गुण है उससे भगवान परे हैं, भगवान गुणातीत है। सो कृष्णा इज बियॉन्ड दिस मटेरियल क्वालिटीज, ही इज अनबॉर्न, ही डजंट हैव ए मटेरियल बॉडी। भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है, दिव्य है। और इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि यू नो मानुषिम तनुमाश्रिता, जब मैं एक मनुष्य का शरीर लेके आता हूँ तो लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। मूढ़ा हम ना भी जानाती, जानाती ज्ञान चक्षुष। सो जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे समझ नहीं पाते हैं। तो वे कहते हैं कि ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस संसार में हर एक जो जीव है इस प्रकृति के 3 गुणों से प्रताड़ित रहता है। लेकिन क्योंकि भगवान जो है वो गुणातीत है, वो गुणों से परे है, और उनमें ना सत्व है, ना रजस है, ना तमस है बेसिकली। तो क्या होता है कि हमारे जो गुण है, गुणों का हम पे प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम सत्व गुण में स्थित रहते हैं तो बहुत ही एक डिवोटी की तरह बिहेव करते हैं। कभी कभी तमोगुण में चले जाते हैं, कभी कभी रजोगुण में चले जाते हैं। और हर गुणों का प्रभाव अलग अलग होता है और ये गुण एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी सत्व गुण प्रधान होता है तो रजो और तमोगुण जो होते हैं वो निचले स्तर पर रहते हैं। कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है तो तमो और जो सत्व गुण है वो नीचे आ जाते हैं, और कभी कभी तमस जो है वो प्रधान हो जाता है। तो इस प्रकार से अफेक्ट होता है, और इसीलिए व्यक्ति किसी को अपना मित्र, किसी को अपना दुश्मन मानता है। तो यदि आप उसके लाइकिंग के हिसाब से कोई कार्य करोगे तो वो अपने आपको अपना मित्र समझेगा, और अगर आप उसके अगेंस्ट में जाके कुछ कार्य करोगे तो वो आपको अपना दुश्मन मानेगा। तो अच्छाई बुराई, दोस्त दुश्मन, दिन रात, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इसका प्रभाव जो है वो जीव पे होता है, भगवान परमात्मा या भगवान पे नहीं होता है। तो कहते हैं कि ये जो गुण है ये भी टाइम फैक्टर से डिटरमाइन होते हैं, कि कभी जैसे हमने कहा कि सत्व गुण ऊपर होता है, बाकी नीचे चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो ज्यादातर सत्वगुण में स्थित होते हैं, इसलिए उनको उस प्रकार का फल प्राप्त होता है। और कभी कभी असुर जो होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण में प्राधान्य प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका खात्मा होता है। और सीधा सीधा अगर देखा जाए तो सुर कौन है और असुर कौन है, तो जिसका सुर भगवान के सुर के साथ मिलता है, मिले तुर सुर मेरा तुम्हारा, तो वो सुर है। और जिसका सुर भगवान के सुर के साथ नहीं मिलता है वो असुर है। बहुत सिंपल से। और फिर वो एक एग्जाम्पल दे के उसको बताते हैं। तो वो कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से यह प्रश्न पूछा था कि जब राजसूय यज्ञ होने वाला था तो राजसूय यज्ञ में ये प्रथा होती है कि अग्र पूजा की जाती है, तो किसकी अग्र पूजा की जाए। हाँ, तो ये प्रश्न उठा था। तो सभी लोग सोचने लगे। तो पांडव में जो सबसे छोटे थे सहदेव, उन्होंने आगे आके कहा कि हालांकि इस असेंबली में, इस सभा में बहुत सारे महान लोग हैं, लेकिन मेरे मत से भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है और उसकी अग्र पूजा करनी चाहिए। और सब लोगों ने एक साथ हुंकार भरी और कहा यस, वी ऑल अग्री। हाँ, सभी लोग। लेकिन कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है तो क्या होता है, दूसरा कोई व्यक्ति जो थोड़ा ईर्ष्यालु होता है उसकी ईर्ष्या और बढ़ जाती है। तो उस समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ उस राजसूय यज्ञ के उस सभा में और कहा कि मैं नहीं मानता कि कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो है ये लंपट है। इसके माँ बाप कौन है किसी को पता नहीं है, ये देवकी नंदन है या यशोदा नंदन है ये भी कोई नहीं जानता। ये नंद नंदन है या फिर ये वसुदेव नंदन है ये भी कोई नहीं जानता। इसका कोई अता पता ही नहीं है। इसकी जात क्या है ये भी कोई नहीं जानता, ये क्षत्रिय है या वैश्य है या कोई नहीं जानता ये कौन है। इसका घर किधर है, इसका ठिकाना क्या है, कोई नहीं जानता। ये किससे प्रेम करता है ये कोई नहीं जानता। बहुत सारे लड़कियों को पटाता था और इस तरह के बिहेव करता था। इसका बिहेवियर जो है वो क्वेश्चनेबल है, इसका कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चनेबल है। ये तो एक्चुअली इन वन सेंस आप ये समझ सकते हो कि ये व्यक्ति जिसका नाम शिशुपाल था, ये भगवान का चचेरा या
मौसेरा जो भी कहो आप, भाई था, मौसेरा भाई था, मौसी का लड़का था। तो ये उत्सर्ग से भत्सरना कर रहा था, लेकिन हाँ, वेद उसको भी ग्लोरीफाई करते हैं। जब वो कहता है कि पता नहीं ये किसका पुत्र है, हाँ, देवकी का या यशोदा का, तो ये बताना चाहते हैं कि भगवान एक्चुअली किसी के पुत्र है ही नहीं क्योंकि भगवान तो सबके माता धाता पितामह है। भगवान वो तो सबके बाप है, हाँ, लेकिन वो ऐसा रूप लेके आए हैं। जब वो कहते हैं कि इसका ठिकाना पता नहीं है, तो भगवान का तो क्या है, अनिकेत है। भगवान को बोलते हैं कि ये पूरा संसार जो है वो उसके वो मालिक है, उनका कोई एक घर नहीं है। भगवान को अनिकेत कहा गया है। हाँ, तो उस प्रकार से कि भाई ये किससे प्रेम करता है, तो वो सभी से प्रेम करते हैं, सभी जीव उससे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से वो ग्लोरीफाई कर रहा था, लेकिन क्रिटिसाइज कर रहा था, और क्रिटिसाइज करते करते इतना क्रिटिसाइज उसको किया कि भगवान कृष्ण को अल्टीमेटली उसको मारना पड़ा। तो जब शिशुपाल की मृत्यु हुई तो शिशुपाल की आत्मा भगवान के पैरों में, उनके चरणों में प्रवेश कर गई। और युधिष्ठिर ने जब सीन देखा सब दूसरों के साथ में, तो बड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने नारद मुनि से पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हुआ कि वह व्यक्ति जो भगवान की इतनी भत्सरना करता है, इतनी निंदा करता है, वह व्यक्ति इस प्रकार से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ भगवान के सामने, जो कि बहुत बहुत बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह मुक्ति ऐसे कैसे प्राप्त हो गई? और मैंने सुना है कि वेण नाम का एक व्यक्ति था जिसने भगवान की भत्सरना की और संतों ने उसको मार डाला और उसको नरक में जाना पड़ा। तो ऐसा कैसे हुआ कि शिशुपाल, जिसको भी नरक जाना चाहिए, हाँ, लेकिन वो नरक ना जाके और भगवान के अंदर प्रविष्ट कर गया? ये तो बहुत अद्भुत बात है, ये तो मेरे समझ के बाहर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हुआ। वो शिशुपाल जो कि जन्म के पहले भगवान की निंदा करना सीख गया था, मतलब बोलने के पहले भगवान की निंदा करना सीख गया था, वो हमेशा भगवान की निंदा करता था, हाँ, लेकिन वह व्यक्ति कैसे भगवान में प्रविष्ट हुआ? मुझे बताओ। अरे उसकी जीभ पे तो कुष्ठ रोग हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, ऐसा कैसे हुआ? ये मेरी समझ के बाहर है, आप बताओ। तो तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न सुनने के बाद उनको कहा कि हे युधिष्ठिर, भगवान के लिए, वेदर इट इज ब्लास्फेमी और प्रेज, वेदर इट इज चेस्टाइजमेंट और रिस्पेक्ट, ऑल आर, वी ऑल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। वो अज्ञानवश होते हैं, लेकिन भगवान जो है वो तो ज्ञान के सागर है। हाँ, तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी ग्लोरीफाई करो या आप उनकी भत्सरना करो। हाँ, द लॉर्ड डजंट पे एनी अटेंशन वेदर यू क्रिटिसाइज हिम और वेदर यू ग्लोरीफाई हिम। इफ वी ग्लोरीफाई लॉर्ड, इट इज एक्चुअली फॉर अवर बेनिफिट। इट्स नॉट दैट बिकॉज ऑफ अवर ग्लोरिफिकेशन लॉर्ड इज गेटिंग एनीथिंग। जैसे गंगा में जाके हम जब गंगा को वही गंगा का जल अर्पण कर देते हैं, तो उससे गंगा का कोई फायदा नहीं होता, हमारा फायदा होता है। तो इसी प्रकार से वो बोलने लगे कि भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ही हैज नो मटेरियल बॉडी, ही हैज नो फॉल्स कंसेप्शन ऑफ आई एंड माइंड। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उनकी भत्सरना करता है, वह समभाव है। तो वो समभाव का पॉइंट प्रूव करने के लिए कहते हैं कि भगवान सबसे समभाव रखते हैं। और बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भगवान को की भक्ति प्राप्त की है और अपना जो भी पापमय जीवन है उसको त्याग दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और वो कुछ 5 एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि गोपियों ने, हाँ, प्रेमवश, यहाँ पे एक्चुअली काम वर्ड यूज करते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं प्रेमवश गोपियों ने क्या किया, भगवान को अपने प्रेम से अचीव किया। हाँ, शिशुपाल, उसने निंदा से, हाँ, और क्या बोलते हैं, जेलसी, ईर्ष्या से, ईर्ष्यावश भी उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। और यदु वंश के जो लोग हैं उन्होंने भगवान से साख्य भाव रख के, भगवान के मित्र बन के भगवान को प्राप्त किया। और आप पांडव, आप लोगों ने भगवान के स्नेह को प्राप्त किया है, आपने भगवान से स्नेह रखा, भगवान आपके स्नेही है। और बाकी जो जनरल डिवोटी होते हैं वो क्या करते हैं, भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं। तो किसी प्रकार से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ये नहीं देखते कि कौन मुझसे घृणा कर रहा है या कौन मुझसे प्रेम कर रहा है। भगवान केवल ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं गीता में, ये सूत्र कहते हैं कि जो मेरे पास जिस रूप से आता है मैं उसी रूप से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। आप अगर भगवान के साथ प्रेम करना चाहते हो तो भगवान भी आपके साथ प्रेम करेंगे। अगर आप भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो तो भगवान आपको युद्ध करने का भी चांस देंगे। तो वो कहते हैं कि आपके 2 भाई, हाँ, क्योंकि एक्चुअली शिशुपाल जो था वो देवकी की सिस्टर, उनकी बहन का पुत्र था।
तो भगवान का मौसेरा भाई हुआ, और कुंती इनकी बुआ थी भगवान की, और उनके पुत्र ये थे, तो वो भी कजिन हुए। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारे जो कजिन है ये शिशुपाल और दंतवक्र, हाँ, ये दोनों भगवान विष्णु के ही दूत थे, लेकिन उनको कोई श्राप मिला और इसलिए उनको इस संसार में आना पड़ा। तो महाराज युधिष्ठिर फिर पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते, देखो हरि कथा इस तरह से सुननी चाहिए कि जिस प्रकार से परीक्षित महाराज और युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कहते हैं कि एक्सप्लेन करो मुझे। युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि जो भगवान के वैकुंठ निवासी है, वैकुंठ के दूत है, हाँ, वो धरती पे कैसे आ गए, वो कैसे गिर गए, हाँ, ऐसे मुक्त आत्माओं को धरती पे आने की कैसे आवश्यकता पड़ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो। और फिर नारद मुनि कहते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ये मुक्त विचरण करते थे। इनके लिए कोई पासपोर्ट, कोई वीजा की आवश्यकता नहीं थी, कोई एरोप्लेन नहीं लगता था, कोई टिकट नहीं लगती थी, ये घूमते रहते थे। तो बोलते घूमते घूमते बाई चांस वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। और जब वैकुंठ के 7 द्वार पार करके जब भगवान वैकुंठ पति के लोक में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय गेट पे 2 द्वारपाल खड़े होते हैं, द्वारपाल जय और विजय, वो उनको रोकते हैं। उनको कहते हैं कौन हो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। तो जब उनको रोका जाता है तो 4 कुमार वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको वो श्राप देते हो, कहते हैं अरे तुम भगवान से मिलने के लिए हमको रोक रहे हो। हाँ? तो ऐसी मेंटालिटी वाले को भगवान के द्वार पर रहने की कोई दरकार नहीं है। यू आर नॉट फिट टू बी देयर। आप जाओ और आप इस मर्त्य लोक में जाके और आप जन्म लो और पाप में जीवन बिताओ और असुर बन जाओगे तुम। तो इस प्रकार से वो गिर जाते हैं। तो ऑब्वियसली विष्णु बाहर आते हैं, नारायण आते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी फॉर द एक्ट ऑफ माई सर्वेंट, तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करना चाहिए। और फिर वो उनको कहते हैं कि ठीक है, तुम 3 जन्म असुरों के लेके तुम वापस आ जाओगे। हालांकि दूसरी जगह इसका विस्तृत वर्णन है, वो कहते हैं कि 7 जन्म आपको भक्त के मिल सकते हैं या 3 जन्म असुरों के मिल सकते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा थी कुछ वीर रस को प्रकट करने की, तो वे कहते हैं कि 3 वर्ष में हम वापस आ जाएंगे। और फिर वो कहते हैं नारद मुनि युधिष्ठिर से कि पहले जन्म में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र, हाँ, ये बने। तो इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो वो उस दरमियान वो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने जिसका वध नरसिंह भगवान ने किया, क्योंकि वो प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित करता था। तो युधिष्ठिर फिर पूछने लगे कि अरे प्रहलाद तो बहुत अच्छा संत पुत्र था, तो फिर उसका पिता उसको इतना तकलीफ क्यों देता था। तो वो फिर आगे के अध्याय में बताते हैं और वो कहते हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु था, वह अपने भाई की मृत्यु से बहुत क्रोधित हो गया था। तो हिरण्याक्ष का जन्म होता है, हिरण्याक्ष अपने हाथ में गदा लेके और दूसरों के साथ लड़ाई करने के लिए घूमते रहता है। पूरे विश्व का भ्रमण करके पहले वो वरुण देव के पास जाता है और वरुण देव कहते हैं कि नहीं नहीं, केवल भगवान तुमसे युद्ध कर सकते हैं। तो पृथ्वी को वो समुद्र की गर्त में फेंक देता है। और फिर आपको पता है वराह देव का अवतार होता है, वराह देव आते हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हैं और हिरण्याक्ष को मार देते हैं। तो जब हिरण्याक्ष को मार देते हैं तो हिरण्यकशिपु वो बहुत क्रोधित होता है और वो कहता है कि अरे इस विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया है। और वो अपने सारे के सारे जो भी उसके एसोसिएट्स रहते हैं उनको बुलाता है, और बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है उन एसोसिएट्स के। वो कहता है भो भो दानव दैत्य दुर्मूर्धम त्रिभक्ष संभर सतबाहो हय ग्रीव नामुच पाक इलवल विप्रचित्त मम वचः। वो कहते हैं कि सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पुलोमन शकुनादाय शुणुनांतर देन क्रिय तमाशु चिरम। वो कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम सब सुनो मेरी बात। हाँ, और वो कहते हैं कि आज हाँ तुच्छ देवताओं का ये पक्ष लेने वाला विष्णु, इसने मेरे प्रिय भाई का वध कर दिया है। हाँ, ये और वो आगे कहते हैं कि विष्णु जो है, हाँ, वो तो इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन उस इम्पार्शियल विष्णु ने क्या किया है, दैट ही हैज गिवन हिज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ इक्वालिटी टू डेमन्स एंड डेमिगॉड, एंड ही हैज टेकन द साइड ऑफ द डेमिगॉड्स एंड ही हैज किल्ड माय ब्रदर। तो अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार दूंगा।
जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ों को अगर काट दिया जाए तो सारा का सारा वृक्ष जो है वो नष्ट हो जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है, उसी प्रकार से ये देवता लोग जो है, इस देवता रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो विष्णु है। उस विष्णु को आज मैं काट दूंगा और मार दूंगा। तो आप एक काम करो, मैं तुमको ये ऑर्डर देता हूं कि पूरा ये दुनिया में जाके तबाही मचा दो, आतंक मचा दो, और जितने भी ब्राह्मणों के घर है उनको जला दो, ब्राह्मणों को मार दो, सारे यज्ञ को बंद कर दो। और इस प्रकार से जब ये होगा तो देवता विचलित हो जाएंगे, देवताओं को उनका आहार नहीं मिलेगा। सो सारे के सारे उनके दूत गए और उन्होंने क्या किया कि जितने भी शहर थे, गांव थे, भूमि थी, चरने की जो जगह थी, गौशालाएं थी, जो भी खेत थे, खलिहान थे, सबको उन्होंने आग लगा दी, सबको मार दिया। और वहां से ये हिरण्यकशिपु अपने भाभी और अपनी माँ के पास गया और उनको जाके और उपदेश देने लगा और उनको कहने लगा कि हे माता और हे भाभीियों, आप ये चिंता मत करो। हाँ, मैं थोड़ा इंग्लिश में ही बोलता हूँ, सो दैट यू शुड नॉट लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ ए ग्रेट हीरो। वो कहने लगे फॉर ए हीरोज डेथ इन फ्रंट ऑफ एनिमीज ग्लोरियस। और फिर वो गीता का संदेश सुनाने लगे उनको। हाँ, तो अगर आप जो हिरण्यकशिपु व्हाट ही स्पीक्स इन दिस चैप्टर, इफ यू रीड, यू विल फील ही इज स्पीकिंग लाइक कृष्णा, गीता की तरह। तो कई बार कई लोग होते हैं जिनको ज्ञान तो होता है लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं होता है कि नहीं, विज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान संहितम, कि वो जो ज्ञान है उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक रेस्टोरेंट में पीपल कम फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड देन दे डिस्पर्स, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो कई बार साथ में आती है, थोड़े दिन रहती है और फिर अलग हो जाती है। और बहुत अलग 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 आत्मा के बारे में जो कि गीता के अंदर संदेश है वो उनको सुनाते हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा समय की मर्यादा को देख के। तो फिर वे कहते हैं कि एवरी कंडीशन सोल रिसीव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, एंड व्हेन हिज वर्क इज फिनिश्ड देन ही गोज बैक। तो आप ऐसा चिंता मत करो। और वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो एक सुयज्ञ के साथ जो घटना घटी थी, एक राजा सुयज्ञ के साथ, वो बताता है। और किस प्रकार से उनका जब परिवार वो जब दे वर लेमेंटिंग एट दैट टाइम, कैसे यमराज एक बालक के रूप में आके उनको शांत करता है। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु उनको सुनाता है और उनकी माँ और भाभी जो है वो सब शांत हो जाती है। और उनको शांत करने के बाद में हिरण्यकशिपु वह अमर बनने की तैयारी करता है। तो नरसिंह पुराण में ये घटना आती है, भागवत में इसका वर्णन नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि एक बार हिरण्यकशिपु अपने दरबार में बैठा रहता है और वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि आते हैं, नारायण नारायण कहते कहते, और भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जब वहां पर आते हैं तो हिरण्यकशिपु जोर से चिल्ला के उनको बोलता है, स्टॉप, यू कैन नॉट टेक नेम ऑफ विष्णु इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने केवल मेरा ही नाम तुम्हें लेना है, विष्णु का नाम तुम नहीं ले सकते, इस प्रकार से। और वो कहते हैं कि स्टॉप। लेकिन नारद मुनि क्या करते हैं, रुकते नहीं। वो तो अपना नारद मुनि बजाई वीणा राधिका रमण नामे। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी चंद्रहास तलवार निकालता है और उस तलवार को घुमा के और नारद मुनि पे फेंकता है। और इस तलवार का एक बहुत विशेष गुण है कि ये तलवार जाके और शत्रु पे अटैक करती है, उसको दो भागों में विभाजित करके, और जो खून लगा रहता है उसको किसी जलाशय में जाके धो के और वापस आके हिरण्यकशिपु के पास आ जाती है। लेकिन जैसे ही तलवार नारद मुनि के ऊपर जाती है और वो तलवार नारद मुनि के शरीर में से निकल जाती है, और नारद मुनि को कुछ नहीं होता क्योंकि उनका शरीर बहुत दिव्य होता है। और क्योंकि उनका शरीर कटता नहीं है तो खून का कोई जरूरत नहीं होता है। तो ये तलवार जो है वो ऑटोमेटिक बिना जलाशय में जाए हिरण्यकशिपु के पास आ जाती है। तो हिरण्यकशिपु को बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा कैसा हुआ कि नारद मुनि के पास ऐसा शरीर कैसा है कि जिसपे अस्त्र शस्त्र का भी असर ना हो। तो नारद मुनि को साइड में लेता है और कहता है कि हे नारद, कौन से चक्की का आटा खाते हो? हाँ? तुम्हारा शरीर कटा क्यों नहीं? हाँ? तो नारद मुनि कहते हैं कि तुझे भी ऐसा शरीर चाहिए क्या? तो असुर होता है, बोलता है कि हाँ। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा शरीर चाहिए तो भगवान का नाम लो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिरण्यकशिपु बोलता है नो वे, मैं कभी ऐसा नाम नहीं लूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, कोई दूसरा तरीका है तो बताओ। तो नारद मुनि कहते हैं दूसरा तरीका है, मंदार पर्वत पे जाके तपस्या कर, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर,
और तो कुछ नहीं हो सकता तेरे लिए। तो वो चाहते थे कि वो मंदार पर्वत पे उसको भेजे ताकि पीछे से नारद मुनि अपनी क्लास चला सके, भागवतम क्लास शुरू कर सके प्रहलाद के साथ में। तो हिरण्यकशिपु वो अपना एक योजना बना के जाता है कि मैं अमर बनूंगा, लेकिन उस योजना का बीज भगवान पहले ही उसके पत्नी के गर्भ में बो देते हैं। और प्रहलाद जो है वो कयाधु के पेट में एंटर करता है और ये जाता है और बहुत भयंकर तपस्या करता है। और इस तपस्या का वर्णन आप देखोगे तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाओगे कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु तपस्या करता है। बताते हैं कि अपने एक हिरण्यकशिपु अपने ही गोज एंड स्टैंड्स ऑन द टिप टो, अपने पैर के एक अंगूठे पे खड़ा होता है, दूसरा पैर पैर पे रखता है, हाथ ऊपर करता है, आंखें ऊपर करके आसमान में देखता है और इतनी भयंकर कई वर्षों तक ये तपस्या करता है। तो हमारे एक शिक्षाष्टकम प्रभु बता रहे थे कि जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने तपस्या की वो बहुत भयंकर थी। that he was standing on his tiptoe, raising his arm in the sky, looking at the sky, and he was there for many years. तो बोले इस तरह की तपस्या बंबई वाले भी करते हैं बेचारे, जब ट्रेन में जाते हैं। हा? तो आप अगर ट्रेन में कभी मुंबई के एंटर करने की कोशिश करोगे तो जब लोग ट्रेन पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन के अंदर कोहिनूर है, उसको लेने के लिए धाड़ 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 सब लोग घुस रहे हैं अंदर जान की बाजी लगा के। और जब ट्रेन से उतरना रहता है तो ऐसा लगता है कि ट्रेन में कोई कोबरा आ गया है, सब लोग धाड़ 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 नीचे उतरते हैं। तो वो बोले कि ट्रेन में जब लोग घुसते हैं तो इतनी गर्दी होती है कि खड़ा रहने की जगह नहीं होती है। तो इसके लिए लोग कैसे खड़े रहते हैं, एक पैर के अंगूठे पे खड़े रहते हैं और पकड़ने के लिए कुछ होता नहीं है तो हैंडल पकड़ते हैं वो वहां पे और हाथ ऊपर करके और हैंडल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और लेकिन इतनी गर्दी होती है कि अगर आप अपना मुंह ऊपर नहीं करोगे, हाँ, सांस भी लेने को नहीं होता है, तो योर नोज विल बी इन समबडीज आर्मपिट, स्मेली आर्मपिट। तो इसके लिए नाक भी ऊपर रखना पड़ता है और इस प्रकार से सांस रोक के, क्योंकि सांस लोगे तो वहीं पे मूर्छित हो जाओगे, सांस रोक के इतनी भयंकर तपस्या लोग ट्रेन में करते हैं। हाँ? और बोलते हैं कि उस तपस्या के बीच में वो लोग क्रॉसवर्ड पजल भी सॉल्व करते हैं और पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। हाँ? बोलते हैं हिरण्यकशिपु वुड नॉट हैव डेयर टू सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल, लेकिन वो इस तरह से भयंकर तपस्या करते हैं कि हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर जो है खत्म हो जाता है, एंट हिल बन जाती है, उसके ऊपर सारी चींटियां उसका शरीर खा लेती है और उस शरीर के अंदर खाली एक स्पार्क बचता है और पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो धुआं 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 हो जाता है उसकी आग और तपस्या के कारण। तो सब ब्रह्मा के पास लोग जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ये पूरा संसार जला देगा, जाओ कुछ करो करके। तो ब्रह्मा जी अपने हंस पे विराज होके और वो वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं हिरण्यकशिपु को दिखाई नहीं दे रहा है, खाली कंकाल दिखाई दे रहा है उसके शरीर का। तो वो अपने हाथ में कमंडलू में से पानी लेके छिड़काव करते हैं और हिरण्यकशिपु वापस से आ जाता है और उसको बहुत अच्छा अपना जो है वापस शरीर प्राप्त होता है। और उसमें वो कहते हैं कि अरे तूने इतनी तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, मांग तुझे क्या चाहिए। हाँ, फॉर दिस रीजन आई हैव कम टू यू, प्लीज आस्क मी ऑल बेनिडिक्शन व्हिच यू डिजायर। तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु पहले तो उनको प्रणाम करता है, उनको बहुत ग्लोरीफाई करता है और फिर कहता है मुझे अमर बना दो। हाँ, क्या कहता है, आई वॉन्ट टू बी इमॉर्टल। एंड व्हाट ब्रह्मा जी गिव्स रिप्लाई, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं बताओ, एंड somebody will tell me. He says, I myself am not immortal, then how can I give you the immortality? Yes. So he says that even I am not immortal, I also come with an expiry date. तो ब्रह्मा जी की लाइफ बहुत लंबी है। भगवत गीता में बताते हैं 7.43 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी जीते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है। तो उन्होंने कहा कि अरे आई एम नॉट इमॉर्टल, हाउ कैन आई मेक यू इमॉर्टल। तो उस समय फिर हिरण्यकशिपु क्या करता है, ही मेक्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वो बोलता है कि मुझे ऐसा एक आप वरदान दो जिससे ऑलमोस्ट मैं अमर हो जाऊं। तो कहता है कि ग्रांट मी दैट आई विल नॉट डाई विद रेसिडेंस और आउटसाइड ऑफ एनी रेसिडेंस, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम, ऑन द ग्राउंड और इन द स्काई। तो कहता है कि ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आसमान में, ना जमीन पे, ना किसी जानवर से मरूं या मनुष्य से, क्योंकि जानवर से वो डरता था। उसके भाई को वराहदेव ने जानवर के रूप में मारा था, पशु रूप में प्रकट हुए थे भगवान। तो वो बोले कि ना मुझे कोई जानवर मार सके, ना कोई मनुष्य मार सके, और कोई भी वो योनि जो आपने बनाई है, क्योंकि उसको लगा था ब्रह्मा जी क्रिएटर है, लेकिन वो तो विसर्ग, सर्ग तो भगवान करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने जिसको भी बनाया वो मुझे मार ना सके, और ना मुझे कोई देवता मार सके, ना मुझे कोई दानव मार सके, ना मुझे कोई नाग मार सके,
हाँ, ना मैं युद्ध भूमि में मरूं, ना मैं कहीं और मरूं। हाँ, इस तरह से मुझे इस प्रकार से आप वरदान दीजिए कि ना मुझे कोई जीवित वस्तु मार सके, ना मुझे कोई मृत वस्तु मार सके, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना जमीन पे ना आसमान में। इस तरह से बहुत सारी चीजें मांगते हैं और ब्रह्मा जी बेचारे क्या कहते हैं, तथास्तु। क्यों? क्योंकि कामस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि देवताओं को जो है वो बूंद देने ही पड़ते हैं अगर आपने उनको प्रसन्न किया है। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे और कहने लगे कि देखो तू जो मांग रहा है, हाँ, लेकिन तू मत समझ के तू अमर हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई अमर नहीं है भगवान को छोड़ के। मरना तो तुझे भी पड़ेगा, लेकिन ठीक है, तू जितना कुछ मांग रहा है मैं तुझे देता हूँ। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल के चले जाते हैं। और अब हिरण्यकशिपु को लगता है कि मैं तो, हाँ, अमर हो गया, लगभग अमर हो गया और मुझे कोई नहीं मार सकता। तो उसने अपनी तबाही मचानी शुरू की एंड हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द यूनिवर्स। हाँ, ये एक चैप्टर का नाम है। और वो हर जगह पे ही स्टार्ट्स कॉन्करिंग द थ्री वर्ल्ड्स, अपर मिडल एंड लोअर। और जो भी गंधर्व लोक है, हाँ, या नाग लोक है, सिद्ध, चारण, विद्याधर, यमराज, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, ये इनके जो भी लोक है इन सब पे आक्रमण कर करके सब पे अपना आधिपत्य जमाता है। और हर जगह पे जाके, हाँ, देवताओं को कैप्चर कर लेता है। इंद्र का आसन छीन लेता है। उसका जो महल है उसका भी बहुत विविध डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसका महल हथिया लेता है, उसकी पत्नी, सब सब वो ले लेता है। और हिरण्यकशिपु इस प्रकार से एकदम मदांत हो जाता है। हाँ, दो प्रकार से, एक पावर का नशा और दूसरा, हाँ, दारू का नशा। तो क्या करते हैं, दैट हिरण्यकशिपु वाज ऑलवेज ड्रंक with strong smelling wines, liquors, and his copper eyes were always rolling। तो उसका जो आंख होता है एकदम तांबे की तरह लाल लाल होता है। और इस प्रकार से सब पे वो अटैक करता है और सारे के सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं वहां से। और भगवान के भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलते कि अरे भगवान आप कहाँ है, ये दुष्ट हिरण्यकशिपु इतना अत्याचार कर रहा है, हाँ, आप कृपया आइए। और भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। हाँ, तो भगवान प्रकट एक वॉइस में बोलते बोलते, आप डरो मत, हाँ, मैं तुम्हारे सबके भले की कामना करता हूं। अभी ये हिरण्यकशिपु का पाप का घड़ा भर गया है, आप चिंता मत करो, मैं प्रकट होऊंगा। प्रहलाद इसका पुत्र जो है, जो कि एक संत बालक है, वो उसको प्रताड़ित करेगा और मैं आऊंगा और हिरण्यकशिपु का नाश कर दूंगा, तुम डरो मत। और जितने भी ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए उन सबको इंटैक्ट रखते हुए मैं उसको मार दूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से वो घोषणा करते हैं। और आगे वर्णन आता है कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु का ये जो बालक है प्रहलाद, हाँ, तो उसके चार पुत्र होते हैं जिसमें से प्रहलाद सबसे अच्छा होता है। बताते हैं कि ही वाज द बेस्ट एंड ही हैड लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज। प्रहलाद महाराज, हाँ, ही वाज अ वेरी कंप्लीटली कल्चर्ड like qualified brahmana, he had good character, he was determined to understand the absolute truth, he had full control of his senses and mind, he liked the super soul and he was kind to every living entity, he was best friend of everyone, he to respectable persons he was a menial servant, to the poor he was like a father, to equals he was like a brother, he considered teachers superiors, as good as god, and he was completely free from the अननेचुरल प्राइड। तो इस प्रकार से इतने सारे गुणों का वर्णन करते हैं कि वो एकदम संत पुरुष थे, हाँ, संत बालक थे बेसिकली। तो इतना कुछ करते हैं। और हालांकि वो असुर कुल में पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो असुर नहीं, भगवान के बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते हैं और इतने सारे उसमें गुण होते हैं। और प्रहलाद महाराज जो थे, अपने गुणों की वजह से खेल कूद में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जैसे हम देखते हैं कि बालक जो होता है वो खेलने में इंटरेस्ट लेता है ना। तो एक्चुअली कितने सारे भजन और उसमें भी इसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के थॉट में, जो स्मरण जो है वो एक्चुअली वो प्रहलाद ने जो है उसको पूरा किया है। सो श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकीश्च कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्री। तो कहते हैं कि जो स्मरण विधि है भगवान के नौ भक्ति की, उसको पूर्ण किसने किया? प्रहलाद ने। तो हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते थे। हाँ, तो ऐसे कहते हैं कि कभी कभी
वो प्रहलाद भगवान के उस चिंतन में कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी कभी बहुत जोर जोर से गाता था, और इस प्रकार से अलग अलग एंजाइटी उसको भगवान के लिए होती थी, और भगवान का पास टाइम्स में वो रमा हुआ होता था। और ये प्रहलाद जो कि हिरण्यकशिपु का बालक संत प्रहलाद, ये हमेशा भगवान के श्री चरण कमलों के स्मरण में रहता था। और वो कहते हैं नारद मुनि कि ऐसे संत बालक को वो जल्लाद, वो आतंकवादी हिरण्यकशिपु, उसने बहुत कष्ट दिया, उसको बहुत कष्ट दिया और बहुत प्रताड़ित किया। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज वापस ये प्रश्न पूछते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हिरण्यकशिपु ने इतना सारा कष्ट दिया इस प्रहलाद को। मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे जरा डिटेल में बताओ, क्योंकि पिता और माता जो होते हैं वो अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। तो ये ऐसा कैसा पिता था, और ऐसे पुत्र को जो कि इतना गुणी है, ऐसे गुणी पुत्र को वो क्यों इस प्रकार से वो करते थे, मुझे बताओ। कि वो अपने पुत्र के प्रति वायलेंट क्यों हो गया। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछते हैं तो वो उनको बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रहलाद, ये षंड और अमरक, ये शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, उसकी क्लासरूम में उसको हिरण्यकशिपु ने भर्ती किया और पढ़ने के लिए भेजा और कहा कि इसको पढ़ाओ। तो भी वहां पे क्या होता था कि ये आसुरिक महाविद्यालय था, ये षंड और अमरक आसुरिक महाविद्यालय, वो यूनिवर्सिटी के अंदर उसका प्रवेश हुआ, और उसको वहां सिखाते थे कि किस प्रकार से काम काम क्रोध लोभ ये सब जो है, इसका इसके वश में रह के और राजनीति करना और मारामारी करना और किस प्रकार से शासन करना, किस प्रकार से झूठ बोलना, ये जो सारे जो गलत कार्य है वो वहां सिखाए जाते थे। लेकिन भगवान जो है, भगवान का ये जो भक्त था प्रहलाद, वो उनसे कुछ सीखता नहीं था। लेकिन प्रहलाद जो था वो नेचुरली डिवोटी था, तो इतना डिवोशन उसमें था। तो कुछ समय स्कूल में भेजने के बाद में फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, और वो जब प्रहलाद उसके पास आया तो बहुत अच्छी तरह से उसने अपने गोदी में बिठाया, और गोदी में बिठा के उसको कहा कि प्रहलाद बताओ तुम स्कूल में क्या सीखते हो। जैसे कोई भी माँ बाप, दे ऑलवेज आस्क देयर चाइल्ड व्हाट डिड यू लर्न टुडे, हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू डू, है कि नहीं। आप सब लोग करते हैं कि नहीं अपने पुत्रों से, और सबसे हम पूछते हैं कि आज स्कूल में दिन कैसा गया, क्या हुआ, बताओ मुझे। तो वो प्रहलाद से पूछने लगा, तो प्रहलाद ने क्या कहा, श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्गहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। तो वे क्या कहते हैं कि मैंने साधुओं से सुना है, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, और वो अपने पिता को कहता है कि हे असुरवर्य, ओ डीमन नंबर 1। हम लोग बहुत सारे पिक्चर देखते हैं नंबर वन कैसे है, तो वो कहता है हे डीमन नंबर 1। तो कहते हैं कि as far as I have learned from my spiritual master, a person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety, because having fallen in dark well where there is no water but only suffering, one should give up this position and go to the forest. And Prabhupada कहते हैं वन मतलब वृंदावन, go to the forest where Krishna consciousness is prevalent. तो कहते हैं कि हित्वा तो पाकम ग्रहमंद कूपम, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है, वो इस अंधकूप में गिरा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, वन जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो जब ये हिरण्यकशिपु सुनता है तो क्या करता है, वो हंसता है बोलता है अरे ये क्या पढ़ाया तेरे को स्कूल के अंदर, ये सब तो हम लोग इधर पढ़ाते नहीं है, कौन पढ़ाया तुमको ऐसा। तुम एक काम करो, ऐसा लगता है कि शायद तुमको कोई पथ भ्रम कर रहा है, जाओ तुम अच्छी तरह से सीखो। और वो बुलाता है षंड और अमर को, कहता है कि ध्यान रखो भाई, कोई वैकुंठ में से आके इसको प्रीचिंग कर रहा है, सम वैकुंठ चैनल इज कमिंग, कोई एफएम वैकुंठ का यहाँ पे चैनल कनेक्ट हो रहा है, तो एक काम करो ब्लॉक कर दो, ये वेबसाइट ब्लॉक कर दो, वैकुंठ.com, गोलोक वृंदावन.com को ब्लॉक कर दो, डोंट अलाउ दिस वेबसाइट टू ओपन इन अवर डोमेन, वो डोमेन को फ्रीज कर दो, जाओ इसको सिखा के लाओ कि शासन कैसे करना चाहिए। तो वो हिरण्यकशिपु की आज्ञा पे वो लेके जाते हैं उसको और उसको सिखाते, उसको बोलते रहे प्रहलाद
ये तुम ऐसा कैसा सब सीख रहे हो, हम तो यहाँ पे स्कूल में ऐसा नहीं सिखाते हैं, कहाँ पे सीखा तुमने ये? तो कहते हैं कि यू नो अरे मेरे गुरुजन, आप किसी को मित्र और किसी को दुश्मन क्यों मानते हो? सभी लोग जो है वो भगवान के अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। हाँ, आप ऐसा सब मत कीजिए। हाँ, आप सबसे प्रेम कीजिए, आप किसी से ईर्ष्या करना मत सिखाइए, किसी से प्रेम, किसी से लड़ाई, ऐसा तुम क्यों सिखाते हो? आप ऐसा मत करो। हम लोग जो सब है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सब तो भगवान के सेवक है। हाँ, एंड वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सो व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस, प्लीज डोंट डू। तो अरे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे तुम बात कर रहे हो, और तुमको ये सब कौन सिखाता है? तो प्रहलाद कहता है कि जिस प्रकार से एक लोहे के जो कण होते हैं वो चुंबक के प्रति सहसा आकर्षित हो जाते हैं, नेचुरली दे आर गेट अट्रैक्टेड। So similarly, like an iron filing gets attracted to magnet, I get attracted to भक्ति of विष्णु। मुझे पता नहीं मुझे किसने सिखाया क्या किया, बट आई एम नेचुरली अट्रैक्टेड। तो इतना जब सुनते हैं तो शंड और हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुमको पीटना पड़ेगा, तुमको बरोबर अनुशासित करना पड़ेगा। मेरी छड़ी किधर है? लाओ मेरी छड़ी और मैं इसको पीटता हूँ, इसको मारता हूँ। ये हमारा नाम खराब करेगा, हाँ, हमारे स्कूल का नाम खराब कर देगा। और वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कांटेदार वृक्ष, हाँ, वह एक जिम्मेदार होता है कि जो एक चंदन का जो वृक्ष होता है, हाँ, उसको उसको नष्ट कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि चंदन के वृक्ष को काटने के लिए जो कांटेदार वृक्ष होता है उसकी लकड़ी लेते हैं, और उस लकड़ी में एक एक्स, हाँ, कुल्हाड़ी लगाते हैं लोहे की, और वो कुल्हाड़ी जो है वो चंदन के वृक्ष को काटती। तो कहते हैं कि अरे ये जो हमारा असुरों का ये जो चंदन का जो गार्डन है उसमें तुम कांटेदार वृक्ष के जैसे पैदा हो गए हो, और ये विष्णु जो है वो एक्स है, वो कुल्हाड़ी का वो लोहा है जिससे वो तुम हम सबको कटवा देगा। तो तुम्हारा तो तुमको तो ठीक करना पड़ेगा, तुमको तो पीटना पड़ेगा। और इस प्रकार से डरा धमका कर, गाली गलौज करके, मार पीट करके, और वो उस बच्चे को पढ़ाते थे। सोचो कैसा स्कूल था उसका। हाँ, भागवतम कहता है दैट दिस इज द वे दे एजुकेटेड हिम। हाँ, इस प्रकार से उसको पढ़ाते थे, लेकिन उनके पढ़ाने का कुछ उस पर असर नहीं हुआ। और जब बहुत टाइम तक उन्होंने पढ़ाया तो वापस से हिरण्यकशिपु के पास वो लेके गए, और जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद आके उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है तो उसको लगा अरे बालक सुधर गया। हाँ, ये जो बिगड़ गया था बालक ये सुधर गया, अभी इसको वापस से बिठाता हूँ अपनी गोदी में और पूछता हूँ कि तुमने क्या पढ़ा। So as a father naturally feels happy to embrace his son, he embraces प्रहलाद, और उसको कहते हैं कि प्रहलाद बता तूने क्या सीखा स्कूल के अंदर। हाँ, तो प्रहलाद क्या कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति छेन्नव लक्षणा क्रियते भगवती अध्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो वो कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो कहते हैं हे पिताजी, हाँ, आप श्रवण करो किसका? विष्णु का। कीर्तन करो किसका? विष्णु का। स्मरण करो किसका? विष्णु का। पाद सेवनम, विष्णु के पैरों की सेवा करो। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, आप विष्णु के भक्त बनो। और जब हिरण्यकशिपु ये सुनता है तो he could not believe his ears कि ये मेरा बेटा क्या बोल रहा है। हाँ, he becomes extremely angry, and then with lips trembling he shouts, "Oh heinous son of Shukracharya! Oh heinous, most unqualified Brahmana, Shand and Amarak! This is the way you teach my son. Is this why I pay you the salary? I gave you, wages for this. What is this nonsense? What are you doing?" और जब इतना जोर से चिल्ला के शुक्राचार्य के पुत्रों को जब वो बुलाता है, so they say that अरे राजा आप ऐसा मत करो। हाथ जोड़ के विनती करते और आपसे कहते हैं कि हमने इसको ऐसा नहीं सिखाया, आप इस प्रकार से ब्राह्मणों का अपमान मत करो, तुमको पाप लगेगा, हमने इसको ऐसा नहीं सिखाया है। अरे हमको भी मालूम नहीं कहां से सीख के आता है ये, हम लोग खुद कंफ्यूज है, हम लोग खुद पागल है, हम लोग इसको जितना समझाने की कोशिश करते हैं ये हमारे पे उल्टा भारी पड़ता है। हाँ, जितनी ज्यादा हम इससे बात करते हैं हमको लगता है ये हमको भक्त बना देगा, हमको डर लगता है इसको पढ़ाने में। हाँ, एक बार गिरिराज स्वामी महाराज जब वो बहुत यंग डिवोटी थे, प्रभुपाद जी को ज्वाइन कर लिए। हाँ, उनके पिता जो कि बहुत संपन्न व्यक्ति थे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, वो प्रभुपाद के पास आए और चेकबुक लेके आए और ब्लैंक चेक पे साइन करके प्रभुपाद के सामने रखा। कहा ये
ये मेरा चेक है और ये गिरिराज है, उस समय जो भी उनका नाम होगा। बोला यू चूज, तो उन दोनों में से तुमको क्या चाहिए। हाँ, अभी प्रभुपाद जी उस समय इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे, धन की बहुत आवश्यकता थी, चाहते तो वो चेक भी ले सकते थे। हाँ, ब्लैंक चेक था, वो कितना भी अमाउंट भर सकते थे उसके अंदर, लेकिन उन्होंने चेक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि देखो मैंने आपके पुत्र को यहाँ पकड़ कर नहीं रखा है, हम किसी को जबरदस्ती बुलाते नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से आया है, समझ के कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आप चाहो तो आप उसको लेके जा सकते हो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आप उससे पूछ लो। गिरिराज महाराज नीचे झुक के प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद एक काम करो, चेक बुक भी रख लो और मुझे भी रख लो। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो गिरिराज को लेके गए और एक डॉक्टर अपॉइंट किया, साइकियाट्रिस्ट, और उस साइकियाट्रिस्ट गिरिराज महाराज को रोज उपदेश देता थे। और वो साइकियाट्रिस्ट जो भी गिरिराज महाराज को पूछता था कि अरे तुम्हें क्या दया नहीं आती अपने पिता पे, हाँ, अपने माता पिता को दुख देते हुए तुमको लज्जा नहीं आती, अच्छा नहीं, अच्छा लगता है क्या। तो गिरिराज महाराज कहते हैं कि कौन से माता पिता की बात कर रहे हो, मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं 84 लाख योनियों में, और बहुत सारे माता पिता हो चुके हैं मेरे। और वो जो कुछ उनको कहते थे भगवत गीता के श्लोक के आधार पे वो उनको जवाब देते थे। तो साइकियाट्रिस्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, बाहर आके उसके पिताजी को बोला कि योर सन इज टोटली इन्फेक्टेड, अगर मैं उसके साथ ज्यादा देर रहूंगा तो आई विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। हाँ, ही इज इन्फेक्टेड विद कृष्णा, आई कैन नॉट ट्रीट हिम, आई एम गोइंग। और जब गिरिराज महाराज जाके ये बात प्रभुपाद जी को बताते हैं, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि वाह, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन टू गेट इन्फेक्टेड बाय कृष्णा। और प्रभुपाद उसके बाद जितने भी लेक्चर देते हैं 3-4 दिनों तक, उस लेक्चर में रोज बोलते हैं कि अवर गिरिराज इज इन्फेक्टेड बाय कृष्णा। हाँ, और गिरिराज महाराज तो क्या भगवान के बड़े भक्त है, उन्होंने एक मस्त पुस्तक लिखी है। अभी वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, मैनी मून्स, वाटरिंग द रूट एंड ऑल, बट अभी रिसेंट उनकी पुस्तक आई है आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, जिसमें जुहू मंदिर के संघर्ष की कहानी है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज गेट दिस बुक, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, एंड प्लीज रीड इट। हाँ, और प्रभुपाद ने बोला था कि बॉम्बे इज गिरिराज एंड गिरिराज इज बॉम्बे। गिरिराज महाराज ने बहुत ही वंडरफुल बुक लिखी है, जिसमें मिस्टर नायर के साथ में जो प्रभुपाद की जो लड़ाई हुई है उसके बारे में इसका वर्णन है कि किस प्रकार से इस संगमरमर के महल, श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर का निर्माण हुआ और क्या स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए प्रभुपाद को, उसका कहानी है। तो मैं कहाँ था, फिर कहाँ पे आ गया, एनीवे। तो बोलते कि हाँ नेचुरली ही इज इन्फेक्टेड, ये प्रहलाद जो है नेचुरली इन्फेक्टेड है, हमें पता नहीं ये कहाँ से सीखता है और हमने इसको कुछ नहीं किया है। तो प्रहलाद को फिर वो पूछते हैं, हिरण्यकशिपु कहते हैं कि अगर ये संड और अमरक ने तुझे नहीं पढ़ाया, हाँ, इनकी यूनिवर्सिटी ने ये तेरे को नहीं पढ़ाया, मैं तुझे नहीं शिक्षा दे रहा हूँ, तो ये तुझे कहाँ से शिक्षा मिल रही है, हाँ बता तू कहाँ से प्राप्त कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रहलाद फिर कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मितोभिपद्येत ग्रह वृतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। तो कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस the people who are addicted to materialistic life make progress towards hellish conditioned planet and repeatedly chew that has already been chewed. Their inclination toward Krishna are never aroused, either by the instructions of others or by their own effort or by combination of both. तो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये भौतिक देह से और ये भौतिक संसार से जिन्होंने आसक्ति बना के रखी है, वो निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। हाँ, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल उसी चीज को चबा रहे हैं जो बार बार चबाई गई है। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने का पूरा जूस निकाल दिया गया बार बार उस मशीन में डाल डाल के, तो क्या खाओगे, बगास। हाँ, उसमें कुछ रस ही नहीं है एक्चुअली। तो बोलते हैं इस प्रकार से, और इसीलिए जिस व्यक्ति ने ऐसे किसी व्यक्ति को अपना नेता मान लिया है या गुरु मान लिया है जो अंधा है, हाँ, जाका गुरु भी आंधला शीश खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। हाँ, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे लीडर को अपना के क्या फायदा जो अंधा है, हाँ, वो सबका नुकसान करेगा। तो कहते हैं कि जब तक आप वैष्णवों की पद धूलि से, हाँ, वैष्णवों की पद धूलि से अपने शरीर का अभिषेक नहीं करते, हाँ, तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। और जब इस प्रकार से प्रहलाद के मुख से सुनता है तो हिरण्यकशिपु वापस अपने कान पे बिलीव नहीं कर सकता है और उसको अपने अपने गोदी से उठा के फेंक देता है नीचे, हाँ, और नीचे फेंक के बोलता है कि टेक दिस बॉय अवे,
हाँ, इसको ले जाओ मेरे सामने से, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, एंड किल हिम एज सुन एज पॉसिबल, इसको मार दो। ये जो बालक है ये मेरे भाई का हत्यारा है, और ये विष्णु का सेवक बन बैठा है, मैं नहीं चाहता ये मेरे पास है, ही इज अनट्रस्टवर्दी, हाँ, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसको लेके जाओ। और जिस प्रकार से शरीर का एक अंग अगर खराब हो जाए तो उसको काट देना चाहिए, नहीं तो नासुर बन के वो पूरे शरीर को खराब कर देगा। इसीलिए चाहे ये मेरा पुत्र है लेकिन ये खराब हो चुका है, हाँ, ये नासुर बने इसके पहले मैं इसको मार देना चाहता हूँ, ले जाओ मेरे सामने से। और वो एग्जाम्पल भी क्या देता है, वो कहता है कि जिस प्रकार से, हाँ, एज द अनकंट्रोल सेंसेस ऑफ द एनिमीज आर एनिमीज ऑफ द योगी, कि योगी के जो अनियंत्रित इंद्रियां जो है वो योगी के दुश्मन है, उसी प्रकार से बालक मेरा दुश्मन बन बैठा है, तुम इसको लेके जाओ। और वहां पे फिर जल्लाद उसको लेके जाते हैं और त्रिशूल से उसके शरीर पे प्रहार करते हैं, उसको बहुत मारते हैं और ऐसा सब करते हैं, और इतना सारा उसको यातना देते हैं। आप सब कथा जानते हो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बताते कि उसको हाथी के पैर के नीचे कुचला जाता है, उसको ऊपर से पर्वत में से फेंका जाता है नीचे, उसको सांप की कोठरी में डाला जाता है, उसको विष दिया जाता है, हाँ, उसके ऊपर कई प्रकार की माया अटैक किया जाता है, और उसको भूखा रखा जाता है, और उसके ऊपर बहुत पत्थर मारे जाते हैं, और इस तरह से अनेक आग में जलाने की कोशिश की जाती है। इतना सब कुछ उसके ऊपर प्रताड़ना करते हैं, लेकिन प्रहलाद को कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो केवल भगवान के स्मरण में रहता है। हाँ, जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजारों में मारा गया, तो इतना मारने के बाद भी हरिदास के मुख पे शिकन भी नहीं थी। हाँ, तो उस जल्लादों ने पूछा कि हरिदास तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो उसने कहा कि पता नहीं, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ। और उसको कुछ न होता है वो देखकर जल्लाद कहने लगे कि बाबा तू कुछ हो कर, नहीं तो वो काजी हमको मार देगा। हाँ, तो इतना उसको मारते पीटते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है, तो वो घबरा जाते हैं सब। और वो प्रहलाद को कहते हैं कि बाबा तुम लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हो यार, तुम मरता क्यों नहीं है? हाँ, तो प्रहलाद कहता है मैं मरूंगा कैसे, तुम गलत टाइप से मुझे मारने की कोशिश करो, तुम मुझे हाथी के पैर के नीचे डाल दिया। हाँ, लेकिन हाथी के एक अग्रज को मेरे, हाँ, भगवान ने बचाया था, गजेंद्र की रक्षा की थी। हाँ, तो वो गजेंद्र का वंशज मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे तुम मेरे को नाग की कोठरी में डाल दिया, सांप की कोठरी में, लेकिन मेरे मेरे स्वामी तो अनंत शेष पे विराजते हैं, अनंत शेष के वंशज सांप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ, अरे तुमने मुझे जहर दिया खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन जहर तो मेरा मामा है, मेरा मामा थोड़ी मुझे मारेगा। वो लोग बेचारे मामा बन रहे थे, उनको समझ में नहीं आया जहर मामा कैसे है। तो समुद्र जब मंथन हुआ उसमें से हलाहल बाहर आया और लक्ष्मी जी भी बाहर आई। तो बोले लक्ष्मी मेरी माँ है और हलाहल उसका भाई है। तो कोई भी लक्ष्मी को अगर पकड़ने की कोशिश करता है नारायण के बिना, तो हलाहल विष उसको छोड़ता नहीं है। तो बोले कि और तुमने मुझे आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन आग तो मेरे विष्णु का मुंह है। हाँ, जब हम आहुति देते हैं स्वाहा तो वो मुख ओपन करते हैं। तो बोलते कि मैं कैसे मर सकता हूँ, तुम कितनी भी यातना दो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। और जब उसको इतना करते हैं तो हिरण्यकशिपु जब सुन के घबरा जाता है, उसको लगता है कि ही अपीयर्स टू बी इमोर्टल। हाँ, कि कितना भी हम इसको कुछ मारने की कोशिश करते हैं, तो हिरण्यकशिपु को ऐसा लगता है कि जो वर मैंने ब्रह्मा जी से मांगे कहीं गलती से इसके अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं हो गए। मैंने मेरा अकाउंट नंबर दिया था, शायद आईबैन नंबर बराबर से नहीं दिया, एक दो डिजिट इधर उधर हो गया रहेगा। तो वट एवर बून्स आई हैव आस्क्ड फ्रॉम ब्रह्मा इट हैज गॉन टू हिम। मैंने कहा था ऊपर नहीं मरू, नीचे में नहीं मरू, अंदर बाहर सब, ये इसको कुछ नहीं हो रहा है, इसको इतना मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो इतना मारने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है, तो संड एंड अमरक जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के सामने लाके वो जल्लाद फेंक देते, बोलते बियॉन्ड रिपेयर, इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और एकदम मोरोस हो जाता है हिरण्यकशिपु, अपने सर पे हाथ रख के। और शंड और अमरक उसको कहते हैं कि अरे आप चिंता क्यों करते हो, आप तो तीनों तीनों लोक के मालिक हो, हम वापिस से समझाएंगे प्रहलाद को और उसको ठीक करेंगे, अनुशासित करके उसको लेके आएंगे, आप चिंता मत करो। तो बोलते ठीक है लेके जाओ। और लेके जाके और जब उसको वापस इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते हैं, तो प्रहलाद क्या करता है कि प्रहलाद वापस क्लास में जाता है और अपने सहपाठी मित्रों को, उसके क्लासमेट को प्रीचिंग चालू कर देता है, उसका प्रीचिंग बढ़ जाता है। तो देखो कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, जब जब समस्याएं आती है, हाँ, जब विपदा आती है, तब कई बार हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस छूट जाता है, और हमको ऐसा लगता है अरे क्यों करूँ उस भगवान के लिए, हाँ, जिनके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे साथ तुमने ये किया। हाँ, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं तोड़ दिया घर यार का। हाँ, वो सोचते हैं कि भगवान इतना तेरे लिए मैं सुबह उठ के 16 माला करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ,
हाँ, चाय कॉफी छोड़ दिया मैंने, बाहर नहीं खाता हूँ, इतना सब कुछ मैं करता हूँ आपके लिए और आप मेरे साथ ऐसा करते हो। हाँ, सो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन, कि जब जीवन में विपदा आए तब हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस किधर खड़ा होता है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। नहीं तो जब तक अच्छा हो रहा है तब तक तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन विपदा में जो है वो सच्ची पहचान होती है किसी भक्त की। तो प्रहलाद क्या होता है कि इतना सारा प्रताड़ना प्रहलाद को मिल रहा है, और कभी कभी भक्तों को लगता है कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा है। हाँ, मेरे को जितना तकलीफ है वो क्या दूसरों को क्या बताऊं, दे विल नॉट बी इवन एबल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड एंड फेथम कि मैं कितना प्रताड़ित हो रहा हूँ। हाँ, इतना, लेकिन हाँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये बहुत है। तो जब जब विपदा है तो कैसे होना चाहिए, उसने ही इंक्रीज्ड हिज प्रीचिंग, दे धनाधन प्रहलाद। और प्रहलाद अपने सहपाठी को बोलने लगा, श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवत है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमदर्थम। तो कहते हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञ, हाँ, कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है उसको बचपन से ही, तो जैसे बाल्य अवस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, पौगंड और किशोर अवस्था, तो बोलते कुमार अवस्था 5 साल के बालक को ही अपना जो है भक्ति शुरू कर देनी चाहिए वहीं से, और बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और ये जो एक चैप्टर है जिसके अंदर प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा देते हैं, ये बहुत एलोबरेट है और बहुत मस्त है। इसको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और सुनने के लिए 1 घंटा 2 घंटा का समय चाहिए। तो इतना समय हमारे पास नहीं, हम तो ऑलरेडी अभी वी आर इन द एंड ऑफ आवर क्लास और अभी नरसिंहदेव प्रकट नहीं हुए हैं, तो मैं इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊंगा। इसको हम कभी और लेंगे क्योंकि मेरे को दूसरी क्लास के लिए भी ये कहना है। तो वी विल टेक दिस टॉपिक सम अदर टाइम, दैट व्हाट प्रहलाद टॉट टू हिज क्लासमेट्स, क्या उन्होंने शिक्षाएं दी। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक भी लिखी स्पेशल इसके क्लास बारे में, में। एक स्पेशल क्लास अलग ओनली प्रहलाद। Yes, Prabhuji. Yes. We will take the teachings of Prahlad Maharaj from that book. We will take. But वो कहते हैं कि एक एसेंस में आपको बताता हूँ, वो कहते हैं प्रहलाद महाराज कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति का जो शरीर होता है, जो जीवन होता है, वो 100 साल का होता है। अब उस 100 साल में दिन होते हैं और रात होती है, तो 50 साल तो रात में चले गए, बचे 50 साल। अब उस 50 साल के अंदर खाना पीना ये वो बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, तो उसके अंदर और हमारे 10-20 साल चले गए। हाँ, और फिर हमारे बहुत सारे काम काज हम करते रहते हैं, उसमें से और 10 साल चले गए, तो हमारे पास हार्डली 100 साल के जीवन में कुछ साल या कुछ महीने ही हमारे पास है भगवान की भक्ति करने के लिए। और अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप सोचो, ध्यान दो इस बात पे, कि बहुत जरूरी बात प्रहलाद बता रहे हैं। वो कहते हैं कि 100 साल की उम्र में 50 साल सोने में जाता है, 20 साल खाने पीने कूदने और ब्रश करने में और बाकी सारी चीजों करने में चले जाता है। हाँ, और उसके अंदर से कितना ना, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे जीवन का समय बस बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। और विष्णु पुराण कहता है कि सबसे बड़ा नुकसान जीवन में अगर कुछ है तो एक क्षण जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। उसको हम वापस कितना भी पैसा देके खरीद नहीं सकते। इसके लिए समय बहुत बलवान है, समय सबसे महान है। समय की कदर करना सीखो, समय को रिस्पेक्ट करना सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि हे मेरे असुर मित्रों, तुमको भगवान ने शरीर दिया है, हाँ, इस शरीर को यूटिलाइज करो और एक गृहस्थी में मत फंसो। वो कहते हैं कि गृहस्थी में आदमी इतना फंस जाता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता। A wife is always very kind and sympathetic and always pleases her husband in a solitary place. Children, talk in the broken language, which is very pleasing to hear. Huh? A father, mother is very affectionate to children and then grandchildren, great grandchildren, and what not. He is not able to come out. So please understand that those apparently who have been advanced in the education of material science will be doomed. Only the spiritual science can progress. That can only save you. So please listen to me. Take bhakti. You are already late. प्लीज स्टार्ट। बहुत शिक्षाएं देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल शिक्षाएं, बहुत डिटेल है। मैं फटाफट आगे भागूंगा क्योंकि हमको नरसिंहदेव का प्राकट्य करना है आज के दिन में।
लेकिन हम आगे बढ़ेंगे. वो कहते हैं नारायण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज वेल विशर एंड फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी. He said that this transcendental knowledge was explained to me by Narad. I heard it in the womb of mother. And please, you also understand. And then the friends become very much astonished. And he said, "Arey Prahlad, तू भी हमारे जैसा ही एक है. You are same nationality like us. You have same passport like we have. How come you have all this knowledge and we don't have? From where you got this knowledge?" And then Prahlad explains that actually when my father went to do tapasya, Indra attacked on our kingdom, and he actually captured everybody, and he actually kidnapped my mother, who at that time was pregnant, and he was going to kill my mother and to me, but then Narad Muni intervenes. Saintly Narad comes and he says that, "Arey, what are you doing? Why are you are taking this lady? She is sinless." So he says that no, the seed of demon Hiranyakashipu is there in her womb. He will get, out, and when he comes, we will kill him. Otherwise, he will become a greater demon than Hiranyakashipu. So Narad Muni says, no. Actually, he will be a great devotee of the Lord. Prahlad will be great devotee of the Lord. You don't worry. You just give Kayadu to me. I will take care, and I promise that because of Prahlad, Hiranyakashipu will be killed, and you all will be protected. You don't worry. So because Indra is also a devotee, he respects Narad Muni, and respecting the Narad, he releases, Prahlad says that he released my mother, and my mother went to Narad Muni's ashram, and Narad Muni started preaching to my mother. He started giving Bhagavatam class to my mother, and it is very, very important for ladies who are pregnant to hear Srimad Bhagavatam. That in the womb, Prahlad heard, and Prahlad says that my mother actually forgot. But I was very conscious. I was consciously listening. So I remember all the instructions of Narad Muni. And he says that I have learned in the womb of my mother. And then there's a great elaboration in Srimad Bhagavatam, but I will just go ahead. And he said that I learned and I remembered. And therefore, I could actually remember all the instructions given by Narad Muni, and he's my guru. So I am very, very grateful to Narad Muni that he gave all this instruction to me. And I did not want to come out of the womb, because otherwise Narad Muni's class will be over. So I was inside the womb till the time my father was doing tapasya, and I was sitting in the womb of my mother and listening to Srimad Bhagavatam. Bolo Granthara Srimad Bhagavat Mahapuran ki jai. Narad Muni jai. Prahlad Maharaj ki jai. So he says that, when Sant and Amarat, they heard that Prahlad is preaching to all the classmates in this way, they became very angry with Prahlad. And they say that we will kill you, Prahlad, we will kill you. Otherwise, Hiranyakashipu will kill us. And then they go and they throw this Prahlad in front of Hiranyakashipu. And they say that your son will be the cause of destruction of all our Asuric dynasty. Not only that, he is spoiled. He is spoiling the whole university. He is spoiling my whole class, whole school, whole college. We can't keep him there. We have rusticated him. This is the transfer certificate of Prahlad. Take this. I don't want him in my school. And when Hiranyakashipu, he hears all this thing, he becomes very, very wild, very angry. And he says, "Oh, most impudent, most unintelligent disruptor of my family, oh, lowest of mankind. Prahlad, have you decided to devour my family? Have you decided that you will end our clan? You will end our dynasty? Today I will send you the lok of Yamraj." He said that you don't understand. You don't understand my strength. You don't understand my strength. I am not able to understand that from where you are getting all this power. And Prahlad smiles and tells, "I am getting my power from the same source as you are getting, my dear father." And we generally give this example. I say that suppose if a tube light asks a fan that, "Oh, my dear fan, from where you are getting this energy to rotate so fast, itna ghumte rehta hai, chakkar lagate rehta hai, from where you are getting this energy? What is the source of your power? What is the source of your rotation?" तो फिर पंखा क्या बोलेगा ट्यूब लाइट को? That, "Oh, my dear tube light, you are really a tube light." तू तो ट्यूब लाइट ही है.
I am getting the power from the same source from where you are getting. Electricity is our source. Where you are getting your luminosity, I am getting my rotation. वहीं से मुझे पावर मिल रहा है. तो प्रहलाद कहता है कि पिताजी जहां से तुमको पावर मिल रहा है मुझे भी वहीं से पावर मिल रहा है. विष्णु is the source of your power. Vishnu is the source of my power. Boost is the secret of my energy. Oh, energy. So Vishnu is the source of my energy. Vishnu is source of your energy also. Hiranyakashipu says, oh, energy. Vishnu, क्या बात कर रहा है? He says, yes. Then he says, oh, my dear father, please give up your demonic mentality. Please do not discriminate between good and bad. Don't think that this is your friend and this is your enemy. Don't consider Vishnu as your enemy. He is Suhrutam Sarvabhutanam. He is the best friend of everybody. Please accept his authority. Otherwise, you will be killed. And then, Hiranyakashipu, he is just burning in anger. And he's saying that, oh, unfortunate Prahlad, I am not able to understand what are you doing. Today I am going to kill you and kill your Vishnu. Tell me, where is your Vishnu? Where is your Vishnu? Tell me, where is your Vishnu? And then Prahlad says, oh, my dear father, you are asking a wrong question. आप गलत प्रश्न पूछ रहे हो मेरे पिताश्री. प्रश्न क्या होना चाहिए? विष्णु कहाँ नहीं है? बता मुझे विष्णु कहाँ नहीं है? Where Vishnu is not? And you are asking where is Vishnu? अरे Vishnu is everywhere. He is सर्वज्ञ. He is सर्वत्र. He is omniscient, omnipotent, omnipresence. He is everywhere. He is everywhere. What are you telling? Show me Vishnu. अरे विष्णु सब जगह पे है. Then he said, कसौ यदि सो सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते. हिरण्यकशिपु says, कसौ यदि सो सर्वत्र, अगर वो सब जगह पे है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, ये खंबे में भी है क्या? खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मुझे? तो प्रहलाद कहते हैं कि मेरे पिताजी वो खंबे में भी है. अभी तो सोचो, this is happening first time in the history of creation that हिरण्यकशिपु is asking प्रहलाद कि वो खंबे में है क्या. नहीं तो हम लोग भी हिरण्यकशिपु पे ड्रामा करते हैं, नरसिंहदेव पे ड्रामा करते हैं. एवरीथिंग इज प्री डायरेक्टेड, प्री डिसाइडेड. और स्टेज के ऊपर एक ही खंबा होता है. वो भी थोड़ा हिलता होता है. एंड व्हेन हिरण्यकशिपु आस्क्ड प्रहलाद इन द ड्रामा कि इस खंबे में नरसिंहदेव है, मतलब विष्णु है. प्रहलाद कहता है हाँ है, मैंने देखा था अभी ड्रामा के पहले अंदर जाके बैठे वो छुप के. प्रहलाद को भी पता है, हिरण्यकशिपु को पता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं था. Then he said that he got up, took his sword, उसने अपनी चंद्रहास तलवार निकाल दी और with great anger he went and he struck the खंबे को बहुत जोर से मारा. जब खंबे को बहुत से जोर से मारा तो क्या हुआ? तदैव तस्मिन् निनादो भीषण बहुवयेनान्द कथम अस्फुटत. जोर से उसमें से आवाज आई, करके जो आवाज आई उसमें से from the within the pillar came out a very fearful sound. बहुत भयंकर कड़कड़ाहट से अट्टहास करती हुई, गर्जना करते हुए एक आवाज आई. और सब लोगों ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, इसका सोर्स कहां है, कहां से दिख रहा है ये. और ये जब आवाज समझ नहीं पा रहे थे, तभी क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु ने देखा, लेकिन ये सुनने के बाद थोड़ा भयभीत हो गया और उसको लगा ये आवाज कहां से आई, ये तो आवाज हमने पहले कभी सुनी नहीं है, कहां से. मैंने जब ये खड़े रह के जब ये खंबा बनाया था, उसमें से तो ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए थी, सॉलिड खंबा है, लेकिन कैसे हुआ, क्या हो गया. तो फिर क्या हुआ, उस खंबे में से भगवान प्रकट हुए. और भगवान क्यों प्रकट हुए? तो कहते हैं क्योंकि प्रहलाद ने कह दिया खंबे में भगवान है, कि लिया हाथ में दैत्य ने जबकि खंजर और कहा पुत्र से है कहां तेरा ईश्वर. सो प्रहलाद ने याद की आह भर कर, दिखाई पड़ा उसको खंबे के अंदर, के है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे. तो क्योंकि प्रहलाद ने कह दिया खंबे में नरसिंहदेव है, उस खंबे से नरसिंहदेव प्रकट हुए. सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः दृश्यत्यात् अद्भुत रूपद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम.
वो कहते हैं कि टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ हिज सर्वेंट प्रहलाद महाराज वाज सब्सटेंशियल, इन अदर वर्ड्स टू प्रूव दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन विद इन द पिलर ऑफ एन असेंबली हॉल, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हरि exhibited a wonderful form that was never seen before. The form was neither that of a man nor that of a lion. Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम. तो उन्होंने प्रकट किया, क्योंकि प्रहलाद ने कह दिया कि इसमें भगवान है, तो प्रहलाद की बात को सत्य घोषित करने के लिए भगवान आधे नर और आधे सिंह के नरसिंह के रूप में प्रकट हुए. बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय. तो जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया कि ये कौन है, क्योंकि ऐसा रूप ना पहले कभी प्रकट हुआ था, ना पहले कभी देखा गया था. कंफ्यूज हो गया वो, कि शेर किधर से नर किधर से है. कंफ्यूज हो गया और वो कहने लगा नायम मृगो नापो नरो. ये तो मृग भी नहीं है, नर भी नहीं है. नायम मृगो नापी नरो विचित्रम अहो किम एतान न मृगेंद्र रूपम. कि ऐसा कैसा रूप है कि ना तो ये नर है और ना ये सिंह है, ये आधे आधे रूप में किधर से आ गया. और हिरण्यकशिपु ने देखना शुरू किया उस फॉर्म को, और जब उसने नरसिंहदेव के दर्शन किए तो क्या हुआ, he was trying to decide the form of Narsimhadev which was standing in front of him. The Lord's form was extremely fearsome because of his angry eyes, which resembled like a molten gold. His shining mane, which expanded the dimension of his fearful face, his deadly teeth. He had his razor-sharp tongue, which was moved about like wheeling sword. His ears were erect and motionless, and his nostrils and gaping mouth appeared like caves of a mountain. His jaws partially parted fearfully, and his entire body touched the sky. His neck was very short and thick. His chest was broad. His waist was thin. His hairs on the body was as white as the rays of the moon. His arms, which resembled flanks of soldiers, spread in all directions as he killed the demons, rogues, and atheists with his conchal disc, club, lotus, and other natural weapons. तो जब हिरण्यकशिपु ने निरीक्षण करना शुरू किया, जब भगवान को देखा तो देखा कि अति भयंकर रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, और उनकी आंखें जो थी वो अग्नि प्रकट कर रही थी, अग्नि प्रकट कर रही थी. और उसमें से ऐसा लग रहा था कि जैसे ज्वलंतमान सोना जो होता है, तपता हुआ सोना है, उसकी तरह से भगवान सुशोभित हो रहे थे. और उनका चेहरा जो क्रोध से लाल लाल हो रखा था, उनके दांत जो थे वो बहुत भयानक थे, उनकी जिह्वा जो थी वो एक तलवार की तरह लटकती हुई जैसे कि सबको मार रही है, उनके कान जो थे वो एकदम खड़े थे ऊपर की तरफ, और उनकी नासिका जो थी ऐसा लग रहा था कि वो पर्वत को छू रही है. और उनका जो गर्दन था वो छोटा सा था, छाती चौड़ी थी, और उनका जो कमर था वो पतली थी. और इस प्रकार से भगवान के जो बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे. ऐसा लगता था मानो कि जैसे चंद्र की किरणें हो, वो अपनी आभा बिखेर रही हो. और इस प्रकार से उनके बहुत सारे हाथ, लगभग 16 हाथ के साथ में भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, और शंख चक्र गदा पद्म लेके, और हाथ में अनेक शस्त्र लेके, और वे सारे के सारे असुरों का जो है वो संहार कर रहे थे. और जब हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से देखा तो उसने क्या किया, अपनी गदा हाथ में उठाई और छलांग लगा के नरसिंहदेव पे टूट पड़ा, और नरसिंहदेव के साथ वो युद्ध करने लगा. और जिस प्रकार से एक छोटा सा कीड़ा किसी आग में गिर के ध्वंस हो जाता है और गायब हो जाता है, उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु भगवान के उस अंग पे गिर के जैसे कि एक छोटा कीड़ा आग में जल के भस्म हो जाएगा, उसी प्रकार से कहीं गायब हो गया. और बहुत ही गुस्से से उसने वो गदा लेके और नरसिंहदेव पे प्रहार करना शुरू किया, और बार बार नरसिंहदेव को पीट रहा था, मार रहा था. और नरसिंहदेव उसके साथ खेल रहे थे उसी प्रकार से जिस प्रकार से गरुड़ एक सर्प के साथ खेलता है, या बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है, और उसी प्रकार से वो उनसे खेलने लगे. और कभी कभी खेलते खेलते बिल्ली चूहे को छोड़ देती है, या गरुड़ सांप को छोड़ देता है. उसी प्रकार से नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया. और जब हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के हाथ से सरक गया तो देवता भयभीत हो गए. उन्होंने बोला अरे बाप रे, ये क्या हो गया, अब नरसिंहदेव से ये छूट गया है, कहीं हमको ना मार देवे. तो इस प्रकार से भयभीत हो गए. लेकिन जब वे देवता भयभीत हो रहे थे तो उनका भय कम करने के लिए नरसिंहदेव हंसने लगे, और ऐसी हंसी जो नरसिंहदेव ने की, हिरण्यकशिपु का दिल बैठ गया.
वो एकदम पूरा डर गया, लेकिन बाज जिस प्रकार से झपट्टा मारता है उसी प्रकार से अपनी तलवार अपने हाथ में लेके और बार बार झपट्टा मारते हुए नरसिंहदेव भगवान पे अपनी मायावी शक्ति से प्रहार कर रहा था। और नरसिंहदेव कभी उसको पकड़ते थे, कभी छोड़ देते थे, कभी पकड़ते थे, कभी छोड़ देते थे, कि जिस प्रकार से गरुड़ एक सर्प को पकड़ पकड़ के छोड़ देता है या मंगूस एक सांप को पकड़ के छोड़ देता है, उसी प्रकार से वो नेवला और सांप का युद्ध हो रहा है, उस प्रकार से युद्ध हो रहा था। और हिरण्यकशिपु कभी उसको पकड़ते थे, कभी छोड़ देते थे, कभी पकड़ते थे, कभी छोड़ देते थे। लेकिन फिर उनको गुस्सा आया, उन्होंने देखा कि सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और देवता प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया बहुत कस के, और ऐसा कस के पकड़ा और पकड़ के ले जाके और उन्होंने अपनी गोदी में बिठा दिया। और दरवाजे पे गए तो ब्रह्मा जी के जितने भी वरदान थे वो सारे वरदान को ध्यान में रखते हुए कि घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, जमीन पे भी नहीं, आसमान पे नहीं, बीच में चौखट पे अपने पैर पे उन्होंने उसको रख दिया। और दिन न था न रात था, जब डस्क हुआ शाम का समय, उस समय नरसिंह देव ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, लेकिन अपने नाखूनों से अपने नाखूनों से उसको क्या किया, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। और पूरे हिरण्यकशिपु को फाड़ के, और इतना जोर से उनको गुस्सा आ रहा था कि अपने उस नाखूनों से जब उन्होंने उसको फाड़ा तो बहुत जोर से नरसिंह भगवान अट्टहास कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और खून के छींटे हर दिशा में उड़ने लगे। और नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे तो किन्हीं ने उनको माला नहीं पहनाई थी, हार नहीं पहना था, स्वागत नहीं किया था। नरसिंह देव ने अपना स्वागत अपने आप कर लिया और हिरण्यकशिपु की अंतड़ियां बाहर निकाली उन्होंने, और वो इंटेस्टाइन को भगवान ने अपने गले में डाल के और हार बना के रख लिया। और उनको इतना क्रोध आया कि इस हिरण्यकशिपु ने मेरे भक्त प्रहलाद को इतनी कठिनाई दी है, इतना प्रताड़ित किया है मेरे को, तो मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं। हरि बोल। तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से वो बहुत जोर जोर से अट्टहास करते हुए और हिरण्यकशिपु का उन्होंने हृदय निकाल दिया। तो ऐसे कहते हैं कि हिरण्यकशिपु लिटरली गेव हार्ट टू नरसिंहदेव, और वो हार्ट निकाल के देखने लगे और वो कहने लगे कि इस हार्ट में कहीं दूसरा प्रहलाद तो नहीं है, मैं देखता हूं जरा। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु और प्रहलाद में अंतर था कि प्रहलाद was seeing spirit in the matter while हिरण्यकशिपु was seeing matter even in the spirit। कि प्रहलाद जो था वो जितना भी चीज उसके सामने आया, आग था या जहर था या हाथी था, कुछ भी, उसमें भगवान को देख रहा था। लेकिन हिरण्यकशिपु के सामने स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, लेकिन उस स्पिरिट के अंदर भी, उस चेतन के अंदर भी उसने जड़ वस्तु को देखा और समझ नहीं पाया और अपना, तो हिरण्यकशिपु ने मार दिया। और जब हिरण्यकशिपु को जब मार दिया, जिस प्रकार से एक शेर एक हाथी पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है, नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो हिरण्यकशिपु के सारे जो उसके जो पार्षद थे, उसके जो साथी थे, वो आके नरसिंहदेव भगवान पे अटैक करने लगे, लेकिन नरसिंह भगवान ने अपने सहस्त्र हाथों से सब लोगों को मार दिया। और उसी प्रकार से अपने नाखूनों से, उनके पास बड़े बड़े शस्त्र थे, लेकिन सिर्फ नाखूनों से भगवान नरसिंहदेव ने तो सबको मार दिया। और फिर नरसिंहदेव उसको हिरण्यकशिपु को फेंक के और उसके सिंहासन पर जाकर बैठ गए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक लोग इतना बड़ा बड़ा सब कुछ बनाते हैं, लेकिन वो इसको यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन भक्त लोग आते हैं उसको यूज करते हैं। बड़ा गार्डन बनाया प्रभुपाद जी, वो बोले कि हम भक्त लोग गार्डन में बैठ के कीर्तन करते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो जाके बैठ गए और बहुत जोर जोर से अट्टहास करते हुए गर्जना कर रहे थे। नरसिंह भगवान बहुत जोर जोर की गर्जना कर रहे थे, और इतने गर्जना के अंदर नरसिंह भगवान की जो गर्जना हो रही थी, ऐसे बताते हैं कि भागवत के अंदर एक ये वर्ष आता है, मैं जरा पढ़ के आपको बताता हूं, जिसके अंदर ये भागवत में 5:18 में है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस तेजसे आविर्भव वज्रनख वज्रदंस्त कर्माशयान रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम शोम शोम। तो इस प्रकार से बहुत चिल्ला चिल्ला के गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जो थे वो बैठे थे उस सिंहासन के ऊपर, और कोई भी देवताओं का या किसी असुर का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो नरसिंहदेव भगवान के पास पहुंच सके, उसके पास जा सके। इवन ब्रह्मा और शिवा वे भी घबरा रहे थे नरसिंहदेव के पास में जाने के लिए। पितृलोक, सिद्ध लोक, विद्याधर लोक,
और नागलोक और ये बाकी जितने भी गंधर्व, चारण, यक्ष वगैरह थे, किम पुरुष लोग जो थे, किन्नर वगैरह, कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो फिर ब्रह्मा और शिव जी ने लक्ष्मी को कहा कि जाओ अपने पति को शांत कराओ। और लक्ष्मी ने जब वो रूप देखा तो लक्ष्मी ने कहा कि अरे रे 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 रे, मैं भी नहीं जा सकती, मैंने कभी अपने पति का ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा। तो सब लोग फिर एक मन से सबने प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद, तुम्हारी वजह से ये प्रकट हुए हैं नरसिंहदेव भगवान, और हम चाहते हैं कि आप नरसिंहदेव भगवान को जाके शांत कराओ, क्योंकि आप ही इनको शांत करा सकते हो। तो प्रहलाद, हाँ, वह डर नहीं रहे थे, क्योंकि ये नरसिंह भगवान का रौद्र रूप जो कि डीमन है उनके लिए तो बहुत खतरनाक है, लेकिन जो डिवोटी है उनके लिए बहुत शांत तरह का ये रूप है कि नहीं? एक सेकंड ना। तो प्रहलाद गया और प्रहलाद जाके अजित प्रभु, जस्ट चेक विथ सुखकर कृष्ण प्रभु, आई थिंक ही लॉग्ड आउट बाय मिस्टेक। सो तो वो जाके प्रहलाद उनको शांत कराने लगे और उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की। और प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, आप इस प्रकार से क्रोधित मत हो, सब लोगों को बहुत भय लग रहा है, बहुत डर रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होके सबको आशीर्वाद दीजिए। और भगवान जो है, हाँ, वो भगवान को किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं हमारे अपने भले के लिए। और इसीलिए नरसिंहदेव भगवान, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। तो नरसिंह भगवान उग्र नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे और प्रहलाद ने उनको शांत नरसिंह के रूप में ला दिया। और नरसिंह भगवान शांत हो गए और नरसिंह भगवान प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा के, एक शेर जिस प्रकार से अपने बच्चे को चाटता है, नरसिंह भगवान चाटने लगे। और वो चाटते चाटते नरसिंह भगवान ने उसको कहा कि प्रहलाद, मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं भगवान, मैं क्या आपके साथ बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस विथ यू, सो आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो नरसिंहदेव बोलने लगे, अरे मैं देना चाहता हूँ, मांग, क्या चाहिए तुझे? तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि आप कुछ देना चाहते हो तो खाली इतना कीजिए कि मेरा पिता जो कि आतंकवादी था और जिसने इतना कष्ट दिया आपको, हाँ, आप उसको माफ कर दो, हाँ, उसको आप मुक्त कर दो। तो नरसिंह भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि हे प्रहलाद, क्या बोल रहा है तू? हाँ, अरे कभी का मैंने तेरे पिता को मुक्त कर दिया है, जब मैंने उसको मारा तभी वो मुक्त हो गया। और केवल तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारी 10 पीढ़ी आगे की और 10 पीढ़ी पीछे की, पूरी 21 पीढ़ी को मैंने डिलीवर कर दिया है, मैंने उनको तार दिया है, मुक्त कर दिया है। तो तू चिंता मत कर, जो भी भगवान का भक्त होगा उसकी एक पीढ़ी नहीं बल्कि 21 पीढ़ियां जो है वो तर जाएगी। तो तू चिंता मत कर, मैंने दे दिया है, और कुछ मुझसे मांग। लेकिन प्रहलाद भगवान से सौदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए प्रहलाद ने और कुछ नहीं मांगा और कहा कि मैं केवल भक्ति करना चाहता हूँ। और जब तक इस दुनिया के अंदर एक भी प्राणी है जो भगवान का भक्त नहीं बनता, मैं इस दुनिया में रह के और उनको प्रीच करना चाहता हूँ और वापस लाना चाहता हूँ। तो ये जो भक्त है उसका एक मूड होता है कि प्राण आछे यार सही हेतु प्रचार, कि वो जो है वो प्रचार करता है, भगवान की भक्ति करता है और भगवान को लेके आता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बहुत ही अच्छी तरह से भगवान को प्रसन्न करते हैं और उनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो ये भागवत में आती है, लेकिन बहुत एलोबरेट प्रार्थना है। और ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है, 9 बज गया है। तो ये जो प्रहलाद की प्रार्थना है और प्रहलाद का की शिक्षाएं अपने जो सहपाठियों को है, इसके ऊपर कभी हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं यहीं पे रुकूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। So although it is very very late, but in case any devotee want to say anything, please feel free to speak. Vijit, thank you so much. Fantastic class, bro. All graphic presentation. How many ever times we hear this one? Hearing from you is really special. Thank you so much, Vijit. Hare Krishna. Am I audible? Yeah, Prabhuji, you are audible. You are audible. You are muted, Prabhuji. Rasamrita Prabhuji is muted. We are Sorry, not I able was to. on mute. Yeah, I was on mute, Mataji. Please tell me. Please tell me.
No, just I told you, Prabhuji, you were speaking, we could not hear. That's what I was telling. I was telling that No, you are on. the last, because I got a call, Mataji. So, No problem. No. Hare Krishna. but you could hear the lecture. Only last 1 minute you could not hear, right? Yeah. We could hear, Prabhuji. But it was very nice. Energy packed, Prabhuji, such energy. God's mercy. Okay. Thank you. Krishna's mercy. Thank you so much for the fantastic class, Prabhuji. Hare Krishna. Sorry, Rameshwar Kani Prabhu, I just got a call in between for just a couple of seconds. So, sorry for that. And हरे thank you, कृष्णा प्रभु जी बहुत ही Yes, प्रभु सुंदर एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कहा है आज एक प्रसंग आपने जो जिस तरीके से चित्रित किया है वो तो बहुत ही यानी विलक्षण ही आपकी कहने की ये है स्टाइल है और इवन एक छोटा सा ये जो आपने बोला वो मुंबई लोकल्स वो भी आपने इतना सुंदर तरीके से बताया व्हाट्स द सिचुएशन इन मुंबई लोकल ट्रेन्स दैट वाज अमेजिंग आई डोंट नो वेदर यू हैव बीन you have traveled at any time. I am born and brought up in Mumbai, so मैं मुंबई के Oh, ट्रेन से okay. बहुत वाकिफ हूँ। So you are बहुत fully aware. जीवन का बहुत समय मैंने मुंबई की ट्रेन में गुजारा है। लेकिन ऑब्वियसली ये Okay, किसी और okay. भक्त ने कहा था, मैंने तो खाली रिपीट किया है उस भक्त की बात को। तो Now all your examples are also very perfect, very apt, very easy to understand and relate to whatever message you wanted to give. It is amazing class. and all these absolutely. examples are actually not my example, Prabhuji. I just hear from somebody and I am speaking, so it's not my own manufacturing. Yeah, that doesn't matter actually. Just telling or giving that examples at the right point in the right way, that is important. So which I think everyone has got, and that has really helped. So beautiful, superb class. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. किसी का कोई प्रश्न है या कुछ और? Hare Krishna, pranams Prabhuji. Prabhuji, Yes, that sadhu manne, that reference is from where? Prabhuji? that is Srimad Bhagavatam only. The sadhu manya, this is 7th canto, 5th chapter, 3rd or 5th verse, Mataji. I don't remember the exact. I'll tell you right now. 1 second. Let me just see. This is from Bhagavatam only. That is 7.5.3, I believe. Yes, Mataji. मेरी आवाज Sorry. Yes, Mataji, बोलिए. Anybody We are saying not anything? able to hear, Mataji. We are not able to hear Mataji. Mataji is unmuted, but we are not able to hear. Seema Which Mataji, Mataji? आप chat में type कीजिए Mataji, because we are not able to hear you. No. If you have Seema a Mataji question- can now speak. Seema Mataji can now speak. No, because we are not able to. Prabhuji. Okay, Hare Krishna. Now you can hear me. Yes, we can Yes, hear you, Mataji. I just want to ask Prabhuji that who was Prahlad Maharaj in his previous birth? You know, Hare Krishna, I am Prabhuji. not very sure, Mataji. Prahlad Maharaj, who is after, who incarnated as Prahlad, वो मुझे पता है, but who is in previous verse, that I am not really. As if somebody is aware, but please tell. Hare Krishna, Yes. Prabhuji, please accept my humble obeisances. Can I tell this, Prabhuji? Yeah, please tell, Mataji. Yeah, Prahlad Maharaj recently, in his previous life. recently I read from this Narsimha book was released by Bhakti Purushottam Maharaj. So in that, Maharaj says that Prahlad, in 2 different Puranas, it is said that in one Purana, he was the 4th son of one Brahmana, and he was a very sinful person. He was after a prostitute and he was living with her. And one day they actually got a fight. They got into a fight, so they did not eat on that day. They did not eat, they did not talk. They were awake day and night also. They did not eat. They were fighting. They were sitting. And fortunately, that day turned out to be Narsimha Chaturdasi. So unaware, without aware, no means, and fortunately, without knowing that it was Narsimha Chaturdasi, they had fasted and they were awakened.
So she actually became Apsara. She was there in Svargaloka, and after that she did good penances, and then she went to Lord Narsimha's planet, and that boy, he actually became as he came as Prahlad. And another one pastime is that this actually I had read before, and I had also shared in our forum. This is this boy again in one boy, he was actually meeting his girlfriend. He used to meet her in a deserted temple, and but in the forest. And one day he actually went with her. I mean, and he actually cleaned the temple in order to have a meeting with her. But it was Narasimha Dev's temple, and without unknowingly he had done this seva to this. So again he took birth as Prahlad. So these were the two pastimes actually specified in the book by Bhakti Purushottam Maharaj. These were taken from two different Puranas, Prabhuji. Hare Krishna. Very nice, Mataji. Thank you, thank you. Thank you. But most important thing from this two incident, we have to understand that if something like this can happen in not very pure intention and desire, if we really do with pure intention and desire, how much we can please Lord Narasimhadev. So that is very nice. So obviously Prahlad Maharaj then again incarnated. So who will tell me who Prahlad Maharaj incarnated as? He incarnated couple of times. Bali Maharaj. No. Bali Maharaj was the great grandson of Prahlad. Was incarnation? Yeah. You're asking incarnation. Prahlad was In Chaitanya Leela, who is Prahlad? Chaitanya Lila. Prahlad was Vasudev, something Vasudev. Very good. Very good, Seemaji. Very good. Vasudev Datta. Wonderful. Vasudev Dutt was one. There is one more. Vasudev Dutt is correct answer. But there is one more personality who is combined incarnation of Prahlad and somebody else. Anybody? Anybody knows? You tell me that somebody also Prabhu, then let us see. Okay, so that is incarnation of Prahlad and Brahmaji together, and that is Srila Haridas Thakur. Haridas Thakur is also, Haridas Thakur is in combined incarnation of Brahmaji as well as Prahlad Maharaj, because he had mood of Prahlad Maharaj and obviously incarnated as Brahma because of his mistake. So this is important. So thank you, Tulsi Mataji, for telling this two incident. Prior I was not knowing it actually. Hare Krishna, Prabhuji. Thanks. And who had asked this question? Whose question was this? Seema Mataji. Seema Gupta. Okay. Very nice. So anybody has any question or should we conclude? Yes, Anil Prabhu, बोलिए. हरि बोल. आपका क्लास हमेशा जैसा बहुत अच्छा होता है. You inspire a lot. There is. So thank you very much. Just थोड़ा बताइए what Chaitanya Mahaprabhu heard Prahlad the Katha for 100 or more times. So what is the real message for us? We must take from it. We should also hear for 100 times. Indeed, अभी मैं 2 दिन में दोबारा ये कथा कर रहा हूँ. हम लोगों का क्या मूड होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ. हमको ऐसा लगता है कि नरसिंह कथा हमको पहले से मालूम है. क्या होगा? स्टोरी ऐसे स्टार्ट होगी. प्रहलाद आएगा, हिरण्यकशिपु को प्रहलाद को प्रताड़ना देगा, बहुत तकलीफ देगा. उसके बाद उसको अलग अलग तरह से सताया जाएगा. फिर नरसिंह भगवान प्रकट होंगे. हिरण्यकशिपु बोलेगा खंबे में भगवान है क्या? प्रहलाद बोलेगा है, और वो खंबे तोड़ के बाहर आएंगे और हिरण्यकशिपु को मार देंगे. तो हम लोग उस इंटेंसिटी से कथा नहीं सुनते हैं. तो कई बार क्या है, कथा का भी ये भगवान का भी अपमान होता है, कथा का भी अपमान होता है. इसके लिए जब कथा सुननी चाहिए तो बहुत रैप्ट अटेंशन के साथ में सुननी चाहिए. भले वो पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार, 100वीं बार सुन रहे हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. बट somehow or other हम लोग कलयुग के प्रोडक्ट है, कलयुग के जीव है. 4, 5, 6, 7, 8 बार एक चीज को सुन लेते हैं तो फिर ऊब जाते, बोर हो जाते हैं उससे. हालांकि हरी कथा से बोर नहीं होना चाहिए,
लेकिन कई बार हमको ऐसा लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उनका साथ ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है हमको तो सब मालूम है। इसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं बदमाशी नहीं करनी चाहिए। जितनी बार हो सके तो ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को चैतन्य महाप्रभु 100 बार सुनते थे। ये पॉइंट ऑब्वियसली मैं बोलना भूल गया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने बताया प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी नाइस पॉइंट। मुझे लगता है एक इस again and again the message to us, one of the thoughts that occurs to me is in spite of difficulties of unimaginable nature from your father Prahlad Maharaj's father himself, the one person who's supposed to be so much loving and so closest to you, in spite of this relationship, the hardships that he has to face, still he was just doing namasmarana. So that means the message to us is, in spite of any worst imaginations or in spite of any greatest calamity we may face, we must still chant and remember namasmarana. So this is probably one of the strong messages. Okay. Hare Krishna, Yeah. Prabhuji. Absolutely, absolutely, Prabhuji. Thank you for your feedback and wonderful point, wonderful comment. That whatever happens, whatever the situation comes not in our favor, but we should not leave the shelter of the Lord, lotus feet of the Lord. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna. Prabhuji. Yes, Prabhuji, you Mataji. actually started with that. Who is the who incarnated as Prahlad? Can you just tell me, Prabhuji, who incarnated as Prahlad? Vasudev Dutt, Mataji, we said. Vasudev Dutt. No, yeah, Prabhuji, but after that, no, in Chaitanya, Vasudeva Datta, it actually you told no, in Chaitanya Mahaprabhu's Leela, you told. Yeah. Chaitanya Yeah, so- Mahaprabhu's Leela, two personalities, Vasudev Dutt and Haridas Thakur. Oh, they only, okay. So I Yeah, thought yeah. you had talked were talking before that. Okay. No. Now I Meaning, understood. Now I understood. okay, my Yeah, English yeah. is bad, Mataji. I am not from English. No I'm a problem. Hindi Prabhuji. vernacular medium student. So, meaning I No, wanted to say no. that, meaning Prahlad came as what? Yeah. No, now I understood, Prabhuji. That was the confusion. No problem. No, I understood. Thank you so much. Okay. Any other comment? Any other question? हरे कृष्णा प्रभु Yes, जी। हाँ, राहुल जी बोलिए। प्रभु आपका जो धारा प्रवाह जो बताने का तरीका है, ऐसा लगता है कि लाइव मूवी चल रही है। इट वाज, आई मीन, मैं सेकंड टाइम आपका ये सुन रहा था। इंग्लिश मेरी भी थोड़ी बहुत कम समझ में आने वाली चीज है, लेकिन इट वाज वेरी गुड। आई मीन द फ्लोलेस, सीरियसली जैसे आप बताते हैं ना, जो आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, इट्स रियली रियली वंडरफुल सर। थैंक यू सो मच। आप जो इतना अच्छा समझाते हैं, हरी कथा सुनने को मिलती है, इट इज वंडरफुल। मैं वेट ही करता रहता हूँ कब क्लास हो। Thank you Hare so Krishna, Prabhu. much. Yes, Rameshwar. Hare- Ajit Prabhu, when we were traveling together in metro, he was listening and I was listening, and he said, incidentally, every festivals Rasamrita Prabhu is coming, and I said it's not incidentally. We fixed like that. Every festival you only will be speaking. So it is our desire and our good fortune. So we are looking for the next festival to come to hear from you, Prabhu. That is your kindness, Prabhuji, more than anything else, that you are being very No, no. kind to engage me in the service, that I can serve some devotees by your grace. Thank you for that. Always grateful to you, Prabhuji. Thank you very much. Somebody has posted on chat. So Anita Mataji, there is no specific verse which tells this. This is told by devotees. I don't know what exactly and where, but Chaitanya Charitamrita doesn't, meaning I really don't remember it, which verse mentions this, but Chaitanya Mahaprabhu does say that you are actually in the mood of Prahlad. But Vasudev Dutt had that kind of a mood. Therefore, Prahlad also had that kind of mood. So devotees, they give their interpretation and the mood here. Okay, I hope this helps.
Okay, so should we conclude now? I hope everyone had blissful Narsimha Chaturdasi festival and wonderful fasting day today. It's a very purifying day. Narsimha Bhagwan is our divine protector. Srila Prabhupada has told at least 3 times a day we should remember Lord Narsimha Dev. We should always remember, but at minimum, and do Narsimha Aarti. So although it's very, very late, but it will take only 1 or 2 minutes. Let us all chant Narsimha Aarti and conclude the class. Okay. Namaste Narasimhaya Praladalaadaine Hiranyakashi Purvakshaha Shilatanka Nathalaye Ito Narsimha Parato Narsimha Yato Yato Yami Tato Narsimha Bahir Narsimha Hridaye Narsimha Narsimha Madim Sharanam Prapade Tavakara Kamalavare Nakham Adbhuta Shinga Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jaya Narsimha Dev Jaya Narsimha Dev Jaya Narsimha Dev Jaya Narsimha Dev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jai Prahlad Maharaj Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Jai Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Bhakti Vigna Vinas Shri Shri Narsimha Dev Bhagwan ki Jai Bhakt Shiromani Shri Prahlad Maharaj ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Srila Gurudev ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much. Thank you very much everyone for attending. Hare Krishna. So with your permission, Thank you, Prabhu. Hare Krishna. thank you Mataji, thank you. So with your permission, we will conclude. Okay, Hari Bol.